Good evening, everyone, and welcome for the Synergy session once again. And welcome, Vaibhav ji also. It's so nice to have you here. अच्छा आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं. मैंने आपका फॉर्मल इंट्रोडक्शन पढ़ा है और मैं कोशिश करती हूँ उसको एसिमिलेट करने की. आपने काफी कुछ किया हुआ है, तो तभी मनोज जी ने बोला कि आज आप ज्यादा अपने बारे में शेयर करें. तो आई थिंक हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. मैं आपका फॉर्मल इंट्रोडक्शन पढ़ रही हूँ, ये इंग्लिश में है. अगम वेता वैभव श्री जी is a multifaceted personality. You can call her a sadhvi, a philosopher, a motivational speaker, or a contemporary thinker. She is born in Jodhpur, Rajasthan on 12th October 1979 while studying BA from Kamala Nehru University, Jodhpur. She became more inclined towards religion and took austerity at the young age of 20. She's very well versed with Eastern and Western philosophies like Jain Agam, Ved, Quran, and Bible. Pujya Shri Virat Guruji was her spiritual guru and source of inspiration. Vaibhav Shriji embodies both originality and erudition, resulting in profound understanding of complex issues. He is widely known for interpreting ancient scriptures in contemporary style, having authored more than 40 books, spiritual books. She has delivered thousands of discourses and workshops that particularly appeals to the youth and the forward thinkers. A devoted Guru Bhakti gifted with beautiful voice, humble, affectionate, and vibrant persona. Her clear vision, impeccable knowledge makes Vaibhav Shriji an extraordinary orator. The thoughts and the views of Vaibhav Shriji are not only spiritualistic, but also scientifically relevant, analytical, which are very relevant in this modern age. As she puts forth, the tradition should be validated with the touchstone of one's intelligence and modified to suit current times. To complete her spiritual aspiration, she travels extensively all over India, meeting people from all walks of life. Their presence, whether through actions or offering, is not to gain publicity, but rather to contribute to people's well-being and happiness. That's that's the outer thing or the formal introduction. But I think Manoj ji would be having a more beautiful informal introduction for you. So over to you, Manoj ji. Thank you. वैभव जी, मैं आपको मिला था कुछ महीने पहले हमारे गुरुकुल में, आश्रम में आप आए थे विकास जी के साथ, और उस टाइम हमारी पहले मुलाकात थी. आई वॉज वेरी वेरी fascinated with the story which you shared on that day with me, and of course that was the beginning. फिर हमने विकास जी के साथ एक सिनर्जी किया, और उनके तो इसे वी शुड बी डू इट टुगेदर. ऐसे नहीं नहीं नहीं, आपका अलग करेंगे बिकॉज आपका जर्नी अलग है, और आज वो दिन आ गया. तो फिर हम दिवाली के दिन मिले थे, और उस टाइम बहुत पूरा दिन वी वर वेरी हैप्पी दैट वी स्पेंड 24 आवर्स टुगेदर. घर पे थे आप, और खूब मज़ा भी किया, आनंद भी किया. मैंने क्या महसूस किया, विकास जी का तो पता ही है, लेकिन आपका कि क्या महसूस किया कि बोथ ऑफ यू आर वेरी चाइल्ड लाइक. एंड वो जो जैसे मुझे गुरु जी की याद आती है व्हेन आई सी विकास जी की, एकदम चाइल्ड लाइक है. एंड बॉयस्ट्रेस, जोकिंग, लाफिंग, एंड वो तत्व आपके अंदर में भी है. स्पॉन्टेनिटी जो मैंने देखा, दैट वाज समथिंग टू रियली 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 इम्बाइब, लर्न. कि एकदम स्पॉन्टेनिटी कि हाँ चलो खाना खाते, चलो खाना खाते, चलो पिक्चर चलते तो पिक्चर चलते हैं, चलो ये करते तो आइसक्रीम खाते तो आइसक्रीम खाते हैं. तो जो भी हो रहा था वो जो 24 घंटे में, both of you you were so spontaneous, so childlike, and yes for everything. तो हम बोलते हैं yes yes why. तो yes 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 ही है. फिर हमको भी जानकारी में मिली कि you know so many people who have done SSY, आप उनके घर में रहे हैं, that all you can share. तो वो that was also new to me because I didn't know, my first meeting. But you got a wonderful smile, and what I admire you is your courage. Really courageous to live your life, courageous to live your truth. That is what is so beautiful. And may we all get that courage
जो लोग अब आज आ रहे हैं, दे विल बी फॉर्चुनेट कि अपना जीवन इधर से जिए, इधर से, रादर देन, ज्यादातर लोग इधर से जीते हैं, इधर से जिए। जो भी आपको वो प्रेरणा आपको आज डेफिनेटली मिलेंगे। वैभव जी, यू कैन स्टार्ट विथ योर स्टोरी एंड आप कैसे आए थे द एज ऑफ 20 से लेकर 40 में, अराउंड 40 41 यू टुक अ डिफरेंट टर्न। यू कैन शेयर द स्टोरी एंड लेट एवरीवन गेट इंस्पायर्ड बाय। थैंक यू रजनी। First of all, thanks to SSY platform and Manoj Lekhi sir and all of your team. आपने हमें इनवाइट किया, पहले स्वामी जी को इनवाइट किया, देन आज मुझे इनवाइट किया और हमारे साथ आपने बहुत टाइम स्पेंड किया, बहुत कुछ हमारे से सुना और आज भी सुनने के लिए रेडी है। तो थैंक्स टू ऑल। एंड फर्स्ट मंगलाचरण करती हूँ मैं। नमो रहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उपज्छायाणम, नमो लोए सर्वसाहनम। नमस्कार सभी को। जय हो, जय गुरुदेव। जय हो। आज आप मेरी स्टोरी सुनना चाह रहे हैं। स्टोरी तो कई सारे लेयर्स पर होती है। एक बाहर आउटर सरकमस्टेंसेस में, एक होती है हमारे मेंटल वर्ल्ड में, एक होती है हमारे इंटेंशनल वर्ल्ड में। तो कितने सारे अलग अलग लेयर्स पे क्या क्या कुछ हो रहा होता है हमारे साथ, हर दिन ही हो रहा होता है ना। बस इतना इन शॉर्ट बता सकती हूँ कि जब मैं समझ आई मेरे को 15 16 साल की एज में, जब मुझे लगने लगा, अपने फ्रेंड्स के वो सुनती थी, अपने घर में, स्कूल में, और फिर धार्मिक माहौल मेरे को घर में मिला, मम्मी पापा की प्रेरणा से। साधु संतों के पास हम लोग बचपन से ही जाते आते रहते थे। तो उनको सुन करके मन में हर बार ऐसा आता था कि हाँ, मैं भी कुछ कर सकती हूँ, मैं भी कुछ कर सकती हूँ। और फिर मेरी मम्मी के भीतर में हमेशा ऐसा होता था कि धर्म के लिए कोई तो आगे आए, जिन शासन के लिए सेवा में मेरी कोई संतान आगे जाए, ऐसे मेरी माँ के भीतर से भाव उठता था। और हमारा सब लोग जो जैन साधु साधु जिनके पास मैं जाया करती थी, वो लोग मुझे इतना प्रेम देते और इतना ज्ञान देते थे, तो मन को ऐसा लगता था बस यही स्वर्ग है, यही मेरे को बस पूरा दिन मुझे कोई पढ़ाते रहे और मैं पढ़ती जाऊं। तो इज द एज ऑफ 17, जब मैं 12th में थी, तभी मैंने डिसाइड किया था कि मुझे इस जैन साधना पथ पे जाना है और शादी नहीं करनी है। और मुझे जितना मजा ज्ञान में आता है, सीखने में आता है, पढ़ने में आता है, उतना मजा मुझे और किसी चीज में नहीं आता। ऑल तो मुझे कोई वैराग्य था, ऐसा नहीं था कि मुझे सब चीजें खराब लगती हो। सब अच्छे लगते थे, लोग अच्छे लगते, बातें करना अच्छा लगता, घूमना फिरना सब कुछ अच्छा लगता था। लेकिन सबसे अच्छा क्या लगता है? साधुओं के पास बैठना, बस पढ़ना सीखना। तो इस रुचि ने मुझे इस दिशा में प्रेरित किया। और फिर कॉलेज में मैंने पहले 12th तक ऐसा लगता था सीए बनूंगी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो मैंने अकाउंटेंसी पढ़ रही थी। लेकिन फिर जब डिसाइड कर लिया कि नहीं, जैन साधु बनना है, तो मेरे को संस्कृत पढ़ना, फिलोसॉफी पढ़ना, साइकोलॉजी पढ़ना, इसमें इंटरेस्ट आया। एंड देन आई चेंज माई सब्जेक्ट, मैंने आर्ट्स लिया। और फिर कॉलेज की अपनी पढ़ाई कर रही थी, और उसी दरमियान मैंने फाइनल ईयर की टाइम में अपना पढ़ाई वढ़ाई छोड़ करके संन्यास ले लिया। और जब संन्यास लिया तो भीतर में तो मैं बहुत उत्साहित थी कि मैं अपनी मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ रही हूँ, और मैं सत्य की खोज में जा रही हूँ, मैं स्वयं को जीऊंगी। लेकिन जैसे ही बाहर की सिचुएशंस वहां पर आई संन्यास के बाद में, तो एक सामाजिक जिंदगी चालू हो गई। अब तक मैं एक परिवार में थी, अब मैं एक बड़े बहुत सारे परिवारों का हिस्सा, समाज का हिस्सा बन गई हूँ। और समाज के फिर अलग अलग चेहरे देखने को मिले। तो जब समाज के इतने डिफरेंट डिफरेंट चेहरे देखती थी, तो भीतर लगता था कि हम क्या सोचकर यहाँ आए और यहाँ तो कुछ और है। मंदिर के बाहर का परिदृश्य कुछ और है और भीतर कुछ और है। हम हम कुछ जिस चीज से अट्रैक्ट होके आ रहे थे, वो भी है, और उसके सिवा बहुत कुछ है। तो फिर समझ में आया कि ये जर्नी खुद की खुद को करनी है।
और अब अगर मुझे स्ट्रांग होना है, मुझे ही कैपेबल होना है, तो मुझे खुद पे फोकस करना है। रादर कि मैं दूसरों की कमियां कमजोरियां देख करके परेशान हूँ, बजाय मैं अपने ऊपर काम करूं कि मैं इस लेवल से बाहर आ जाऊं। और मेरे को इतना अच्छा सहयोग मिला, हमेशा अच्छा सहयोग मिलता रहा। पहले तो मुझे इतना अच्छा घर परिवार, मम्मी बहनों का साथ, सब कुछ बहुत अच्छा मिला। जो साधु महात्मा मुझे पढ़ाने को मिल आते थे, इतने अच्छे आते थे, सबने मुझे दिल से प्रेम से पढ़ाई कराई। और फिर जब दीक्षा के बाद मेरे भीतर और कुछ प्रेरणाएं जागी, तो फिर भीतर में ऐसा हुआ कि सत्य क्या है, सत्य क्या है, ये एक बड़ा प्रश्न पैदा होने लगा। क्योंकि मैं बौद्धिक रूप से तो शास्त्रों को जानती हूँ, क्रिया आचरण मेरा बहुत, जैसा किताबों में शास्त्रों में लिखा है जैन साधु की चर्या कैसी होनी चाहिए, मैं वैसा कर रही हूँ। उन सब के बावजूद मेरे भीतर कोई एक तत्व है जो अभी अतृप्त है, असंतुष्ट है, जहां मुझे को अभी मैं अपना उस डायमेंशन को एक्सप्लोर नहीं कर पाई हूँ। तो मेरे भीतर बड़ी एक पीड़ा होती थी, तड़प होती थी कि फिर सत्य क्या है, जब मैं ये सब कुछ करके भी उस सत्य को नहीं अनुभव कर पा रही, तो फिर मार्ग क्या है। तो वो जो मेरे भीतर मार्ग की खोज थी, तो मैंने जिन महाराज साहब लोगों से पढ़ाई करी और दीक्षा ली जिनके पास, उनमें मेरे एक मामा महाराज साहब है, सुमति मुनि जी महाराज साहब, और दूसरे ग्रुप के लोग। तो मैंने उनसे प्रश्न किए, तो उन्होंने बड़ी ईमानदारी से कहा कि हमारे पास जितना नॉलेज था, इंफॉर्मेशन थी, हमने सब आपको शेयर कर दी, इसके आगे हम नहीं जानते, अब कहीं और खोजो। कहाँ खोजूं, कैसे खोजूं, कुछ भी तो नहीं पता। और फिर जैन साधुओं की तो बहुत लिमिटेशंस होती है, वो तो ना कहीं जा सकते हैं, ना कोई शिविर अटेंड कर सकते हैं, ना कुछ और। तब तक तो खैर कोई टेक्नोलॉजी यूज नहीं करते, हम इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं करते, तो देयर वर सो मेनी लिमिटेशंस। लेकिन ये बात कहीं से समझ में आ गई कि भीतर प्यास है तो वो पूरी होगी। और फिर किसी दिन मेरे को, 2002 की बात है, मेरे भीतर जब प्रश्नों का बवंडर मच रहा है, भीतर बहुत भूचाल चल रहा है, और बाहर में मैं बहुत ही एक एक्सट्रीम डिसिप्लिन लाइफ जी रही हूँ, और दोनों के बीच में मैं अपने आप को देख रही हूँ मैं क्या हूँ। उस टाइम में मेरे हाथ में आचार्य रजनीश की कुछ बुक्स लगी, और मेरे भीतर एक नया ही डायमेंशन ओपन हुआ। उनकी वाणी मेरे अंदर ऐसे जाती थी जैसे कोई एक प्यासी धरती पे कोई बादल गरज बरस रहे हो ऐसे। और वो छूती थी अंदर तक टच, ऐसा लगता था मेरे लिए ही बोल रहे हैं, मुझे ही कुछ कह रहे हैं। और फिर आंख से आंसू बहते कि आप तो चले गए, मुझे कौन मिलेगा, मुझे कौन संभालेगा, आप तो अब इस दुनिया में नहीं हो। क्योंकि 2002 में मुझे उनकी बुक साथ लगी, और उनकी तो अब क्या होगा मेरे साथ। लेकिन अस्तित्व कैसे पुकार सुनता है। मैं इस बात के लिए सबको अपना ये अनुभव शेयर करती हूँ कि अगर हमारी प्यास जैसी होती है, हमको वैसा मार्ग मिलता है। चाहे हम कितने भी तड़पे, कितने भी व्याकुल हो, लेकिन हमको रास्ता मिलता है, रास्ता है, हम ही तैयार हो जाए, बात इतनी है। और मेरे को जीवन में तब विराट गुरु जी मिले। विराट गुरु जी वॉज एनलाइटेंड पर्सन। वो खुद सुलझे हुए थे, वो जोधपुर के निवासी थे, और अभी भी उनका परिवार जोधपुर में रहता है। और वो भी एक जैन परिवार में ही रहते थे। उनके भी भीतर किसी समय में संन्यास लेने का भाव उठा था। लेकिन जब उन्होंने देखा कि साधु समाज में बहुत कुछ ईगो है, कॉम्प्लेक्सेस है, और साधु समाज जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है, तो वो साधु समाज में दीक्षित नहीं हुए। लेकिन वो भीतरी अर्थों में दीक्षित हुए, और भीतरी अर्थों से उनके भीतर जागरण फूट चुका था। तो उनसे कई साधु साध्वी लोग उनसे पढ़ते थे, उनसे मार्गदर्शन लेते थे। तो किसी ने उनको हमारे बारे में बताया, और वो हमारे ग्रुप की एक साध्वी के साथ कनेक्टेड हुए, और वो हमारे ग्रुप में जब आए, तो मेरा पहला ही सवाल छूटते उनको पहली मीटिंग में मैंने ये पूछा, सत्य क्या है, मैं सत्य जानना चाहती हूँ। बस उनको कहीं ये समझ आया कि इसके भीतर प्यास है, तो उन्होंने मुझे अपना समय दिया, ऊर्जा दी। और उनके सानिध्य में हम लगभग 10 साल, 2002 से 2012 में दीक्षा के बाद एक ऐसे गुरुजी से मिली हूँ जो साधु के वेश में नहीं है। तो समाज को वो एक्सेप्टेड नहीं होता कि कोई साध्वी का गुरु कोई गृहस्थ हो। तो मेरे लिए समाज में एक अलग स्टोरी पैदा होती थी, बट मेरे लिए तो बहुत ही अद्भुत बात थी कि मुझे कोई गुरु मिला, और मैंने पहली बार जाना अध्यात्म क्या होता है। एक अलग ही जगत हमारे भीतर खुला, और मेरे को पहली बार पता लगा कि गुरु की महिमा क्या होती है। गुरु कभी कपड़ों से, क्रियाओं से नहीं बंधा हुआ होता है, गुरु कुछ और ही होता है, वो हमारे लिए बियॉन्ड इमेजिनेशन है, आउट ऑफ बॉक्स है। उनको मिल करके
मेरे भीतर एक नया तत्व अंकुरित होने लगा, एक नई यात्रा शुरू हुई। और न केवल मेरे भीतर, मेरे पूरे ग्रुप के भीतर, हमारा पूरा ग्रुप उनकी कृपा दृष्टि और उनकी दृष्टि में हम लोग शिक्षित हो रहे हैं, विकसित हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। सबकी अपनी अपनी अलग अलग स्थितियां होती है, मानसिक, बाहरी, सब कुछ। लेकिन हमको हर स्थिति में वो सुलझाते जाते थे, हर स्थिति में सुलझाते जाते थे। हम उलझते, उससे पहले वो सुलझने का कोई ना कोई सूत्र पकड़ाते, समझ देते, दृष्टि देते, प्रेरणा देते, साहस देते। उन्होंने सिखाया कि सत्य को जीना, कभी भीड़ को मत जीना, समाज को मत जीना। उनका बड़ा एक प्यारा सेंटेंस आप सबके साथ शेयर करती हूँ। वो कहा करते थे कि जो व्यक्ति 4 चीजों से नहीं डरता है, उसका मोक्ष पक्का। कौन सी 4 चीजों से? वो कहते हैं अपने पिछले कर्मों के फल से मत डरो। कोई कर्म का कोई प्रभाव, यानी कोई भी परिस्थिति आज में आई है, उससे बिल्कुल मत घबराओ। कभी समाज क्या बोलता है, उससे बिल्कुल मत डरो। बीमारी आ जाए तो मत डरो, मौत आ जाए तो मत डरो, अपमान मिल जाए तो मत डरो, बस डरो मत। सारी बात का सार ये था, डरो मत। अगर डर गए तो मर गए। वो कहते थे खुद को जीना, अपने हृदय की लय को सुनना। उनकी बहुत प्यारी एक कविता है, उस कविता की एक पंक्ति आपके साथ शेयर करती हूँ। कहते थे कुछ चाह तेरी कुछ करता है, कुछ सोच रहा कुछ डरता है। कुछ चाह तेरी कुछ करता है, कुछ सोच रहा कुछ डरता है। कर डाल सफल ही अकेलय को, जो डरता है सो मरता है। यह सृष्टि चितों का जंगल है, भटकन से मार्ग मिलेगा क्या। आदर्शों के निर्बल कर से, युग का बल वीर्य दबेगा क्या। आदर्शों के निर्बल कर से, आदर्शों के यानी आइडियल्स के निर्बल हाथों से हम युग के बलवीर्य को दबा सकते हैं क्या? हम किसी युग को नहीं दबा सकते। हम नई जनरेशन को नहीं दबा सकते, नई सोच को नहीं दबा सकते, हम Sure. नए इनोवेशंस को नहीं दबा सकते। हम्म। तो कहते हैं आइडियल्स को नहीं, प्रैक्टिकल को जीना, अपनी भीतर को सुनना और तीनों को एक करना, हृदय की लय को और चाहत को, सोच को और क्रिया को अलग अलग मत करने देना, एक बना देना। बस उन्हीं की प्रेरणा ने मुझे एक अलग ही मजबूती दी, अलग दृष्टि दी और अपने आप को जीने के लिए साहस दिया। और वही साहस मुझे एक दिन इस हकीकत तक ले आया, जब मुझे 2017-18 में ये क्लियर हुआ कि जैन समाज में रहते हुए, जैन विधि से साधना करते हुए मैं एक एक लेवल, एक सर्टेन लेवल तक आई। लेकिन मुझे लग रहा है कि अपने आप को कंप्लीट मैं यहाँ नहीं कर पा रही हूँ। क्यों नहीं कर पा रही? क्योंकि मेरा नेचर अलग है और जो साधना का परफॉर्मा है वो डिफरेंट है। और ये बात मैं मेरे लिए नहीं बोल रही, मैं सैकड़ों साधु साध्वियों को जानती हूँ जो इस पथ पर चल रहे हैं लेकिन मार्ग से भ्रष्ट है। क्यों? क्योंकि उनको मार्ग मिला ही नहीं। क्यों नहीं मिला? क्योंकि उनके भीतर की स्थितियों को सॉल्व करने के लिए जो सतत सहयोग मिलना चाहिए, कई बार तो वो नहीं मिला। और कई बार उनको अपने आप के साथ सच्चा होने का ही मौका नहीं मिला। खुद के साथ सच्चा होने, खुद को ही रूबरू करने का मौका ही नहीं मिला। और मैं ये बातें आज एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कर रही हूँ और मैं जानती हूँ ये बात तो फैलेगी, दूर तक फैलने ही वाली है। तो उन सारे साधु साधियों के लिए जिनसे मुझे बहुत प्रेम है, बहुत लगाव है, मुझे सब अपने ही लगते हैं। अपने क्या बोल सकती हूँ उनको, भाई बहन जो भी बोल दो, या अपनी संतान बोल दो, मुझे सब वैसे ही लगते हैं। और मैं सबके लिए भाव करती हूँ कि सब खुद को जी सके। हम जो जीने के लिए आए वो जी करके जाएं, अपने आप को पूर्णता से खिला करके जाएं। और वो कैसे खिल सके, उसमें क्या क्या बाधक होते हैं, वो बाधक तत्व को हम पहचाने। तो मैं जो वहां देख रही थी, तो मैं समझ पा रही थी कि मैं जिस प्लेटफॉर्म पर हूँ, उस प्लेटफॉर्म पर मेरा एक रोल हो रहा है, एक रोल लाइफ चल रही है। लेकिन उस रोल लाइफ और मेरी अपने भीतर की जो रियल लाइफ है, उसके बीच में कुछ डिस्टेंस है। और जब तक वो दोनों एक नहीं हो जाते, तब तक बेचैनी खत्म नहीं होगी। और बेचैनी है यानी बीमारी है। और वो बीमारी फिर कई कई रूपों में फूटती है। हम देखते हैं समाज में जो साधु साधुओं के झगड़े देखते हैं, संप्रदायवाद देखते हैं, जो इतना कुछ कूटनीति, राजनीति, सब कुछ, वो इसीलिए है क्योंकि वो लोग अपने भीतर में खुश नहीं है, अपने आप को नहीं जी पाए हैं। जब अपने आप को नहीं जी पाए हैं तो वो किसी तरह से एक इमेजिनरी सेल्फ को सेटिस्फाई करने के लिए एक ईगो ट्रिप में चले जाते हैं। ये बिल्कुल। ईगो ट्रिप
इसीलिए है क्योंकि वो एक इमेजिनरी सेल्फ को सेटिस्फाई कर रहा है, जो उनकी रियल सेल्फ है वो सेटिस्फाई नहीं हुई है। और जिसको रियल सेल्फ सेटिस्फाई होगी उसको कभी बाहर की पड़ी नहीं रहेगी, उसको क्यों पड़ी रहेगी। जैसे लोग मुझे बोलते इतना चेंज आपने किया क्या, लोग इतना आपके बारे में कुछ कुछ बोलते, आपको फर्क नहीं पड़ता। मैं बोलती मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं फर्क पड़ता? क्योंकि मैं अपनी सच्चाई को जी रही हूँ। एब्सोल्युटली। मेरा मेरा अगर जो स्वभाव है, सपोज आपकी स्त्री प्रकृति है, तो आपकी साधना, आपकी मुक्ति का मार्ग एक स्त्रीण मार्ग है। आप पुरुषेण मार्ग से मुक्त नहीं हो सकते हो। और जो जैन साधना की पद्धति है वो पुरुषेण मार्ग साधना की पद्धति है। वो संकल्प साधना की पद्धति है। वो एक एक एकांत जिंदगी जीने की पद्धति है। हालांकि आज वैसा रहा ही नहीं है। आज एकांत लाइफ जी सके ऐसे साधु है ही नहीं, वो सब सोशल हो गए। और मैं बहुत बोला करती थी जब मैं साध्वी ड्रेस में थी तब भी, कि हम एक घर के इंसान न रह करके हम बहुत सारे घरों के सदस्य बन गए। हम एक इंस्टीट्यूशनल लाइफ जी रहे हैं। और जैसे हम इंस्टीट्यूशनल लाइफ जी रहे हैं तो हम फिर सोशल ही है, फिर फॉर्मल ही है, फिर हम नॉर्मल नहीं रहे। और जो नॉर्मल भी नहीं रहा और जो फॉर्मल हो गया है, वो तो कितनी सारी बीमारियों का घर बनेगा। और हम देख ही रहे हैं साधु समाज में कितनी सारी बीमारियां हैं। खैर, तो 17-18 तक आते आते मेरे भीतर कुछ बहुत परिवर्तन भीतर हो रहे हैं। बाहर के साथ में मैं अपना देख पा रही हूँ। और मैं बाहर की सोसाइटी जिसके साथ एसोसिएशन इतने सालों से हूँ, वहां मैं अपने आप को कहीं पा ही नहीं रही। क्योंकि बाहर की दृष्टि से मैं एक पीक पर हूँ। उस पीक पर हूँ जिसपे लोग कहते हैं कि सबको सम्मान की उस ऊंचाई को छूना चाहिए, समाज में उस ऊंचाई तक जाना चाहिए, जो हमको बचपन से सिखाया जाता है। सो कॉल्ड जैसे आप लोग फैमिली लाइफ में जीते हो तो आपको सिखाया गया कि बहुत पैसे होने चाहिए, बहुत नाम होना चाहिए, बहुत बड़ा बंगला होना चाहिए, सुंदर गाड़ियां होनी चाहिए। तो ऐसे साधुओं को भी कुछ अलग मोटोस दिए जाते हैं कि आपके चातुर्मास में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो वो कहे या ना कहा जाए, लेकिन सबकी नजरों में उसको ही कोई सक्सेसफुल साधु मानते हैं। और वहां भी एक तरह का ट्रैप है। वो एक ट्रैप है, वो सही नहीं है, लेकिन वो है। समाज की वो स्थिति है। और उस स्थिति में सो कॉल्ड जो सक्सेसफुल कहलाते हैं, मैं उस सक्सेस की पीक पर आ गई हूँ। और मुझे वहां पे आकर के अपने भीतर की शून्यता समझ आ रही है कि ये मेरा नहीं है, इसके साथ आकर के मैं अपने आप को कंप्लीट नहीं कर पा रही। तो मुझे क्लियर हो गया कि ये वे तो नहीं है। और अगर मैं सोसाइटी में कुछ चेंज करने की जो लगातार कोशिश कर रही हूँ, कि सोसाइटी बहुत ऑर्थोडॉक्स है, बहुत ट्रेडिशनल सोच वाली है, जहाँ हम साइंटिफिक मैसेज देना चाहते हैं, तो वहां पे परंपरा को मानने वाले तो लाखों लोग, और साइंटिफिकली सुनने के लिए तैयार कोई गिनती में आए जितने लोग। तो मेरे को लेकर के तो हमेशा ही कंट्रोवर्सी रहती थी। क्योंकि मैं जो भी बात कह रही हूँ और समाज की जो चली आ रही ढर्रा है उससे वो डिफरेंट है। तो मुझे समाज को लेके चलना है और अपनी बात भी कहनी है। अपनी बात मुझे कैसे मिली? मुझे विराट गुरु जी से मिली। उन्होंने मुझे सूत्रों के वो अर्थ बताए जो वाकई है, लेकिन किताबों में नहीं है और किताबों से मिल नहीं सकते। वो किसी जीवंत व्यक्ति से ही मिल सकते हैं। तो आई एम सो ब्लेस्ड कि मुझे वो मिला। इसलिए मुझे सूत्रों को समझने की एक डिफरेंट दृष्टि मिली। उसको जीने का एक अलग साहस मिला। और उसकी अभिव्यक्ति करने की भी मुझे गुरु कृपा से वरदान मिला। तो मैं जब समाज में बोलती हूँ तो दो हमेशा ही कंट्रोवर्सी पैदा होती है। क्योंकि जो रूढ़िगत लोग हैं उनको मैं समझ नहीं आती। और जो वाकई जिज्ञासु और जीवन के साथ जुड़ के कुछ प्रयोग करना चाहते हैं, उनके लिए मैं कोई इशारा बन पाती हूँ। तो हमेशा वो चल रहा था। तो खैर उसमें मुझे कभी घबराहट नहीं थी। लोग मेरे बारे में तब भी बहुत कुछ बोलते थे, पक्ष विपक्ष सदा पैदा होता है। और विराट गुरु जी आ, क्या करते थे? आज भी बोलते ही होंगे। आज भी बोलते ही होंगे। क्योंकि मैंने विराट मैंने मैंने सुना था कि आपको, आप पे लाखों लाखों फॉलोअर्स थे, और है और थे, या समथिंग आई हर्ड लाइक दैट फ्रॉम यू। सो उस पे डेफिनेटली, आई मीन टू टेक, इसलिए मैंने पहले बताया क्योंकि आई अप्रिशिएट योर करेज टू लिव योर ट्रूथ एवरीवन। एंड हर चीज में ये किसी को बड़ा नहीं करना है या छोटा भी नहीं करना है, या राइट एंड रॉन्ग का सवाल ही नहीं आता है। इट इज जस्ट दैट एवरीवन हैज द फ्रीडम टू लिव हिज और हर ट्रूथ। एंड bottom line of everything, Vaibhama, is that bottom line, I mean, if you say आध्यात्मिक का एक ही वाक्य है तो is unconditional love, unconditional acceptance of whoever it is, वो संत हो या डकायत हो, दोनों को स्वीकार करना, वो हाँ, संतों का वो है, ऐसा ही स्वभाव। है। ऐसा ही है। प्लीज कंटिन्यू, सही ब्यूटिफुल। बोला।
बिल्कुल आपने मुझे बॉटम लाइन मुझे ठीक पकड़ी। नहीं, और मुझे भी देखो, लाइक यू सेड, यू नो, आई नो योर लिटिल बैकग्राउंड, आपके द्वारा, विकास जी से द्वारा, आई नो द बैकग्राउंड। तो मैं, when I was meditating one of the days, then I got your thought, no, you must have this energy with her. तो उसी टाइम मैंने आपको, उसी मेडिटेशन से उठा, मैंने आपको फोन लगा कि आप कर सकते हैं। तो तब क्या है कि आई नो कि बहुत जो जो जैन समाज से जुड़े हुए हैं, शायद उनको शायद अच्छा नहीं लगा और समथिंग, शायद, यू नो, इट इज पॉसिबल। लेकिन we are not here to this thing, we are just here to express ourselves and openly speak about something which touches your heart. आध्यात्मिक में एक ही चीज है, सबको, सर्वजनो सुखिनो भवन्तु, परस्पर देवो भव, एंड इंक्लूड एवरीवन, जो भी है, यू नो, लाइक बुद्धा Yes, yes. बुद्धा could include अंगुली माला, जिसने 909 999 कत्ल हम्म, किया। तो there are so many stories, and Shri Ram was could take the knowledge from Ravan, you know, go and yeah. bow. So these are so many stories, so you can just add on कि it is nothing कि just because आपने 20 साल एक पद्धतिया से चालू किया तो उसमें ही रहना है, you can हम्म, always this thing. But in the same thing, I would like to ask you, once you complete the story, then I will ask. Yeah. ओके ओके। तो देन 2017-18 आई रियलाइज कि ये जो मैं पुणे की इंटेलेक्चुअल सोसाइटी के साथ हूँ, और ये चेंजेस को एक्सेप्ट करने वाली सोसाइटी है, तो वहाँ मेरी बहुत डिस्कशन हुई और मैंने बहुत एफर्ट्स लिए वहाँ जैन यूथ के साथ में, कैसे हम अपने विचारों को कम्युनिकेट कर सके उसके लिए। एंड देन वन डे आई रियलाइज कि नहीं, ये भी नहीं है, अब कुछ और है मेरा पथ। अब कुछ और है, लेकिन वो क्या है ये नहीं पता। ये नहीं है ये तो पता लग गया, क्या है ये नहीं पता। तो मैं अपने इंटेलेक्चुअल माइंड से इतनी सोच पाती थी कि शायद मैं कुछ एजुकेशन लाइन के अंदर कुछ और करूँ, कुछ और दिशा से काम करूँ, ट्रेडिशनल पाथ के से मैं से कनेक्टेड रहते हुए कुछ एक्स्ट्रा कर सकूं। तो मैं अपनी जो मेरी लिमिटेड सोच से मैं वैसे ही चल सकती थी। तो मैं वहां पे कुछ प्रयास कर रही थी इसके लिए, इस दिशा में। लेकिन साथ ही साथ मेरे भीतर कोई और तत्व, एकांत में मेरे को रहने का एक मौका मिला 2019 में। मैंने चातुर्मास नहीं लिया और मैंने डिसाइड किया मैं चौमासे नहीं करूंगी। अब मैं किसी और तरीके से साधना करूंगी। और वहां मैंने अपनी किताबों का लेखन कार्य मेरा चल रहा था, कुछ का ट्रांसलेशन हो रहा था, इंग्लिश ट्रांसलेशन, मैंने उसमें अपना टाइम दे रही थी। और साथ ही साथ एक टाइम ऐसा आया कि जब मेरे पास पब्लिक को से मैंने अपने आप को डिस्कनेक्ट किया और सोचा कि मैं केवल अपने आप पे, अपनी बुक्स पे फोकस करूंगी, तो पता लगा बुक्स भी मेरे भीतर से हट गई। अब मेरे किताब खोलती हूँ और मेरे भीतर से आता है किताब बंद कर, आंख बंद कर और बैठ जा। और मैं आंख बंद करके बैठ जाती हूँ, मैं घंटों घंटों ऐसे। बस मेरे पास अब मुझे कोई शब्द नहीं चाहिए, कोई दृश्य नहीं चाहिए, कोई लोग नहीं चाहिए, और मैं अपने भीतर हूँ। और जब मैं भीतर किसी और डायमेंशन में जा रही हूँ, तब मुझे फील हो रहा है कि मेरे भीतर से कुछ आ रहा है। आवाज आती है कि समवन शुड हियर फॉर मी, कोई और मुझे हाथ पकड़ने वाला चाहिए, कोई हो। लेकिन मेरे लिए तो इम्पॉसिबल कि कोई मुझे मिले, क्योंकि मेरे विराट गुरु जी, वो मेरे लिए सब कुछ, और वो 2012 में शरीर छोड़ के जा चुके। स्टिल वो है, देह में नहीं है लेकिन है। गुरु कभी मरते नहीं, गुरु अमर होते हैं। तो मैं उनसे, और शांति सुरेश्वर जी गुरुदेव मांडोली वाले, जिनकी कृपा मुझे विराट गुरु जी की वजह से मिली, वो दोनों गुरुदेव से रोज प्रेयर करती थी कि आपने मुझे अब तक संभाला, आगे भी संभालो और किसी रूप में मेरे जीवन में आओ। क्योंकि यहाँ तो मुझे कोई भी ऐसा नहीं मिल रहा जिसके सामने मेरा दिल से समर्पण घटित हो। कोई भी नहीं मिल रहा। क्योंकि मैं इंटेलेक्चुअल लेवल पे देखूं या अपने भीतर के लेवल पे देखूं, मेरे भीतर मैं फियर नहीं पाती हूँ। लेकिन मैं बहुत सारे लोगों के बीच में जहां भी देखती हूँ, वहां सब जगह फियर मिलता है, कॉम्प्लेक्स मिलते हैं, क्लैरिटी नहीं मिलती। तो मेरे को कहीं भी ऐसा नहीं लगता था कि मैं अपने लेवल पे किससे बात करूं। ये मेरी स्थिति मैं बता रही हूँ, इट्स नॉट कि मैं कोई घमंड से कह रही हूँ। लेकिन मैं अपनी स्थिति से देख पाती थी, वहां तक मुझे कोई नहीं दिख रहा था। तो मुझे लगा नहीं इस जीवन में मुझे कोई मिलेगा, लेकिन बस मैं गुरुदेव से प्रार्थना करती थी आप किसी रूप में आ जाओ। और मैं नहीं जानती अब आगे क्या होगा। यहाँ तक जितना आपने सिखाया मैं चली, इसके आगे कैसे चलूं मुझे नहीं पता। और 2019 का ये सारा मेरा एकांत में रहना, अपने ही भीतर को देख पाना और अपने ही
कई सारे द्वंद्वों से गुजरना। और 2020 के 1 जनवरी को एक कॉल आता है, और वो कॉल पूना के कोई परिचित व्यक्ति का है, और वो मुझे कहते हैं कि किसी से बात कीजिए। वो सामने वाले को फोन पकड़ाते हैं, और मैं फोन पे जब सुनती हूँ तो सामने वाला कोई वर्ड नहीं बोलता, खाली हंसता जाता है, हंसता जाता है, और हंसता ही जाता है। कोई 15 to 20 मिनट्स तक केवल हंसी गूंज रही है फोन से। और मैं आंख बंद करके, फोन के एक साइड में मैं हूँ, एक साइड में वो हंसी है, और मैं आंख बंद करके वो हंसी सुनती जा रही हूँ, सुनती जा रही हूँ। एंड देन वो हंसी मुझे कनेक्ट होती है। मैं वहां रियलाइज कर पाती हूँ ये हंसी नॉर्मल व्यक्ति की हंसी नहीं है, किसी गहरे 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 तलों से ये हंसी निकल के आ रही है, और वो तल कहीं मेरे को भी छू रहा है। बस वो हंसी छूती है, और कुछ दिनों के बाद में वो व्यक्ति सामने होते हैं मेरे, जो हंस रहे थे। वो है स्वामी विकास जी। कोई बात नहीं होती है, और फिर जब बात होती है तो एक ही सेंटेंस में मुझे ये क्लियर हो गया कि ये वही फ्रीक्वेंसी है जो गुरु जी की फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी में मैं डेवलप हो रही हूँ। विराट गुरु जी की फ्रीक्वेंसी से ही वो है सेम, क्योंकि सेम बात वो कहते हैं। मैंने अपने लाइफ में संकल्प किया कि किसी की नहीं मानूंगा, खुद जानूंगा, और मेरे को गुरु जी समझ आ गए। क्योंकि गुरु जी हमेशा कहते थे मानो मत, जानो। और स्वामी जी का यही संकल्प था, मैं मानूंगा नहीं, खुद जानूंगा। और फिर एक कोई बात होती है, और उनके एक प्रश्न के जवाब में मैं झुक जाती हूँ, मैं चुप हो जाती हूँ, और मेरा सिर झुक जाता है। वो भीतर वाला सिर कुछ झुक गया। बाहर वाला झुके वो बड़ी बात नहीं है, वो तो कईयों के सामने झुकता है, लेकिन भीतर से कुछ हट गया। और बस कोई 10-12 दिन हम पूना में अलग अलग स्थानों पे ट्रेवल कर रहे थे। ये जून एंड की बात थी, और 1 जुलाई को आई गॉट क्लैरिटी इन माई लाइफ। वो भी मेरे किसी शून्य से मेरे भीतर से आवाज आई कि ये है, और बस मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। एंड तब से अब तक हाथ पकड़ा हुआ है। बड़े मजे की बात, हमारा पूरा ग्रुप साथ साथ घूम रहा था। मैं अपने ग्रुप की ग्रुप लीडर रही हूँ, हम 6 साधवियां थी। और ये मेरे भीतर दीक्षा के पहले साल से ही आता था कि मैं जब 20 साल की हो जाऊंगी तब कुछ नया करूंगी। क्योंकि हमारे शास्त्र में लिखा है कि आप जब तक आपकी दीक्षा 20 साल की ना हो जाए, आपकी उम्र 40 साल की ना हो जाए, और आप पर्टिकुलर शास्त्रों के जानकार ना हो जाओ, तब तक आप स्थिर नहीं बनते और कुछ नया करने की स्थिति में नहीं आते। तो मेरे भीतर तब से था कि मुझे कुछ तो नया करना है, क्योंकि समाज की स्थिति में और जो शास्त्र की स्थिति है और जो हमारी स्थिति है, तीनों में डिफरेंस है। सूत्र कुछ और कह रहे हैं, हमारी स्थितियां कुछ और समाज की स्थितियां कुछ और है। तो मैं हमेशा ही इस तीनों के तालमेल में विसंगतियां देख करके सोचती थी कुछ तो भी डिफरेंट होएगा मेरे से। आ, और मैं वेट करती थी कि जब मैं 40 साल की हो जाऊंगी तब मैं कुछ करूंगी, तब तक मेरी दीक्षा को भी 20 साल हो जाएंगे। पर मुझे नहीं पता था वो नया किस रूप में होने वाला है, वो पुराना किस तरीके से मर जाने वाला है। स्वामी जी के सेंटेंसेस मुझे ऐसे अंदर गए, जैसे कि जहां जहां कोई अंदर घाव होता है, डॉक्टर बिल्कुल वहीं पे सर्जरी करता है, बिल्कुल ऐसी सर्जरी हुई। क्योंकि मैं इस समाज में लगातार प्राण फूके जा रही थी अपना, और स्वामी जी मिले और उन्होंने बोला कि मुर्दे में प्राण फूकना आसान है या नया बच्चा पैदा करना आसान है। मैंने बोला ऑब्वियसली नया बच्चा पैदा करना। बोले मुर्दे में प्राण फूकते फूकते तो आपके प्राण ही खत्म हो जाएंगे। और मैं वो रियलाइज कर रही थी 17-18 में, जब मैं हाईएस्ट अपना सोसाइटी को दे रही थी, सुबह से रात तक मैं प्रोग्राम्स लिए जा रही हूँ, मेरे बहुत सारे अलग अलग वर्कशॉप्स है, अलग अलग शिविर लगा रही हूँ। और मैं देख रही हूँ कि मेरे प्राण चुकते जा रहे हैं, मैं बीमार हो गई, मेरा गला खराब हो गया, और मैं बोलते बोलते थक गई। और मेरे को रियलाइज हुआ कि इस सोसाइटी में यूटिलिटी वैल्यू होती है। जब तक आप बोलते रहो आप बहुत महान हो, जिस दिन आप बोलना बंद कर दो, आपकी उपयोगिता कम हो जाए, आपके प्रति लोगों का रवैया बदल जाता है। ये सब जगह है, फैमिली में भी यही, आपकी यूटिलिटी वैल्यू है, आपकी उपयोगिता का मूल्य है। जब तक आप उपयोगी हो लोग आपको बहुत प्यार करते हैं, जैसे ही आप उपयोगी नहीं रहते हो लोगों का दृष्टिकोण आपके प्रति बदल जाता है। बस कुछ ऐसी ही घटनाएं ऑटोमेटिक मेरे चारों ओर घट रही है, कि वहां से मेरा मोह भंग होता जा रहा, सोसाइटी से मोह भंग हो गया, फिर मेरा अपने ग्रुप से मोह भंग हो गया, मेरी सराउंडिंग से मोह भंग हो गया, और वो होता ही जा रहा, मैं कुछ नहीं कर रही पर बाय चांस होता जा रहा है। बाय चांस ऐसा हो रहा है कि मेरा अतीत जाता जा रहा है और मैं कोई नए डायमेंशन में बढ़ती जा रही हूँ। अब मेरे करने से नहीं हो रहा ये सब कुछ।
लेकिन फिर भी जिम्मेदार तो मैं ही हूँ, कोई और जिम्मेदार नहीं है, मैं ही जिम्मेदार हूँ, क्योंकि मेरे ही भीतर था कि मेरे को एक तालाब की भांति बंद करके अपने पानी को सड़ा करके नहीं मरना है। अगर ये नदी के लिए है तो ये अपने सागर तक पहुंचेगी। तो मेरे ही भीतर था कभी भी। मैं बहुत प्रेरित रहती थी और प्रेरित करती भी थी, क्योंकि मेरे भीतर हमेशा रहता था कि नहीं, मैं पुरातन को जीने के लिए नहीं पैदा हुई हूँ, मैं अपने आप को जीने के लिए पैदा हुई हूँ। तो बहुत लोग जब मुझे बोलते थे, जब चरम मंगल का ये 2020 के अंदर हमने विराट शांति निलय का उद्घाटन हुआ 26 जनवरी को पाली में आश्रम में, तो मैंने डिसीजन लेना चाहा कि हम मुपति छोड़ते हैं, मुपति की आवश्यकता नहीं है हमको, और हम कोई परंपरागत जीने के लिए पैदा नहीं हुए, हम अपने सच्चाई को खोजने और उसको जीने के लिए आए हैं। तो मेरे सराउंडिंग के लोग इतना साहस नहीं कर पा रहे थे, तो वो मना कर रहे थे। तो लोग मुझे पूछते, आप क्या हो, स्थानक वासी हो या डेरावासी हो? तो मैं बोलती थी, हम कोई बासी नहीं, हम ताजे हैं। ना तो हम स्थानक वासी है, ना हम डेरा वासी है, हम कोई बासी नहीं, हम तो ताजे हैं। हम क्यों पुराने बने, हमारी पहचान किसी ओल्ड से क्यों लेते हो? हमारी पहचान हम देंगे, हमारी पहचान के लिए हमें पुरानी की क्या जरूरत है कि हम बाप दादों के नाम से कोई पहचान पाए? हमें कोई पहचान नहीं चाहिए, हम जो है सो है। आपको हमसे मिलना है, हमसे मिलिए, हमको पुराने से जोड़ करके क्यों मिलते हो? तो इट वॉज माई दृष्टिकोण। तो मैं हमेशा कह रही थी, पार करना चाहते हो इस गरजते सिंधु को यदि, प्राण लेकर आज लहरों में उतरना ही पड़ेगा। ये लहर, ये तरंगे दूर से नए जग के नए संदेश लाती। तो मैं हमेशा देखती थी कि नहीं, मुझे कुछ और बुला रहा है, वो क्या है वो नहीं पता था, और वो इस रूप में सामने खुला। मुझे ऐसा लगता है विराट गुरु जी ने मेरे लिए स्वामी विकास जी को भेज दिया। और स्वामी जी को मिलके जैसे आ, In fact, Guruji would always say, and he keeps on saying कि experience is the best teacher, you know. या, कुछ भी, I mean, किताबों में जो भी पढ़ो, जितना भी पढ़ो, तो इसीलिए सिद्ध समाधि योग यानी कि SSY जो इज अ फुल एक्सपीरियंशियल प्रोग्राम। हमने ये नहीं बोलते कि ये मानो, हम गुरुजी हमेशा हाँ, बोलते हैं कि ऐसा करेंगे तो ऐसा हो सकता है, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो सकता है, आप जानो, आप अनुभव करो। तो हर चीज जो है पहले, ही वुड ऑलवेज बी अगेंस्ट दी ब्लैक बोर्ड टीचिंग नहीं, पहले उनको अनुभव करवाओ। तो या, अनुभव, नारायण का दर्शन करवाओ, फिर उनको पूछने दो कि नारायण कौन है। या हाँ, ऐसे रिट्रीट में हमने रिट्रीट या एडवांस कोर्सेज में, भावा समाधि ट्रेनिंग में बहुत से चीज ऐसे प्रोसेसेस गुरुजी ने डाले हैं जहाँ लोगों को अनुभव होता है। तो अनुभव होने के बाद फिर क्या सत्य है वो खुद जानते हैं, नहीं यस, तो यस, किताबों में हम कितना भी पढ़े, कितना भी मतलब वी कैन गिव अ वेरी नाइस लेक्चर ऑल्सो, लेकिन हम्म, वो कोई भी, मैं तो बिजनेस में था, मुझे उठा के चलो टीचिंग करो। अब मैं क्या करूं? अरे आपको थोड़ी टीचिंग करना है, आपको सिर्फ प्ले पॉज करने का, प्ले पॉज करो, क्वेश्चन पूछते जाओ अपने आप। तो वो पूछते पूछते, उनको नहीं पूछ रहा हूँ, मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ, आप लोगों को बोलो, आप उनसे बोल नहीं रहे, अपने आप से पूछो। दे आर जस्ट एक्टर और निमित्त है जहां हाँ, आप अपने आप से कनेक्ट हो सकते हैं। तो आई हैव गिवन यस, सिंपल, मतलब व्हाट यू कॉल इट, सिंपल बोलते हैं टूल या क्या बोलते हैं, आप लोगों को बोलते जाओ आपको क्या चाहिए, किस तरह से जिंदगी जीना है। सपोज यू हैव मैरिज प्रॉब्लम, ऐसे अरे यू टेल एवरीवन मैरिज इज सो सिंपल बाबा, सो सिंपल, सो सिंपल। फिर आप झाँक कर देखो, सिंपल है? अच्छा नहीं, अच्छा मैं तो दूं। अरे बच्चे का प्रॉब्लम है, मैं बोला, बच्चे को बोला पेरेंटिंग इज सो सिंपल, सो सिंपल। आप उनको नहीं कह रहे, खुद को कह रहे। और खुद को कहते 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 अपने जिंदगी में झांक कर देखेंगे कि सिंपल क्यों नहीं है भैया। तो सिंपल है। अब सिंपल बोलते बोलते सिंपल झांकने को भी मिलेगा, इंट्रोस्पेक्शन भी मिलेगा, एंड यू विल फाइंड द रियल ट्रूथ। सिंपल है, लेकिन बोलते बोलते आपके जीवन में सिंपल भी हो जाएगा। एंड यस, एवरीथिंग आई एम टेलिंग नाउ माई लेटेस्ट दिस ईयर, क्योंकि मुझे भी घबराहट था कोविड से पहले। सो इन द कोविड टाइम द घबराहट निकल गया, एंड निकलते गया, निकलते गया, निकलते गया। सो देन, like being in the this संस्था ओनली, देयर सो मेनी थिंग, मेरे खुद के फियर्स, खुद के, वो क्या सोचेगा, वो क्या बोलेगा, वो क्या सोचेगा, तो वो बोलते बोलते लोगों को मैं बोलता हूँ, जैसे आपने अभी बोला डर निकाल दीजिए, तो ये बोलते बोलते निकल गया। फिर अगर पेरेंटिंग इश्यू है बच्चों का, तो उनको बोलो पेरेंटिंग इज वेरी सिंपल।
तो बोलते बोलते आप अपने आप पर झांक कर देखेंगे कि सिंपल है क्या, अरे नहीं ये तो मैं खुद कर लूंगा। सो व्हाट यू हैव टू से अबाउट दैट, आई एम आस्किंग यू उस पर। ऐसा है ना, एवरीथिंग इज सिंपल, हम सिंपल हो तो। हम्म। क्योंकि उलझन कहीं बाहर नहीं होती ना, उलझन तो हमारे अंदर होती है। हमारी विजन की क्लैरिटी नहीं होती हमें। एक्चुअली हमें हमें क्या चाहिए। मैं अपने लाइफ का एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। व्हेन आई वाज इन 9th या 8th क्लास, दिन का समय, मैं अपनी मम्मी के साथ बिस्तर पे लेटी हुई हूँ और मम्मी दादी के बारे में कुछ कुछ बोल रही है कि दादी ने ऐसा बोल दिया, वैसा बोल दिया, ऐसा किया, वैसा किया। तो मैं अपनी मम्मी से बोलती हूँ कि आपको दादी के साथ रहना है कि नहीं रहना है, आपको उनकी सेवा करनी है या नहीं करनी, पहले ये क्लियर कर लो। अगर आपको क्लियर है कि आपको उनके साथ रहना है और उनकी सेवा करनी है, फिर वो जो कुछ भी करे उसको एक्सेप्ट कर लो। और नहीं करनी है तो फिर जो कुछ भी करे उसको मना कर दो, क्लियरली मना कर लो। पीछे बात करने से क्या होगा। मैं आज मुड़ के देखती हूँ तो सोचती हूँ, मुझे उस समय 8वीं कक्षा में मेरे को किसने कोई समझ दी रहेगी। लेकिन ये अंदर से पहले से बात आती थी हमेशा कि क्लैरिटी रखो लाइफ के अंदर, करना क्या है। करना है तो करो, नहीं करना है तो नहीं करो। हम खुद ही अपने में उलझ जाते हैं। चाहे वो मैरिज लाइफ है, पेरेंटिंग लाइफ है, आई डोंट नो अबाउट एनीथिंग बिकॉज मेरी तो कोई मैरिज लाइफ नहीं, कोई पेरेंटिंग लाइफ नहीं है। लेकिन मैं अपने ग्रुप में रही हूँ और बहुत सारे लोगों के साथ हमेशा ही कनेक्टेड रही हूँ। और बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत प्रेम किया है और मेरे से हमेशा ही सलाह मांगी है और सलाह ली है। तो मैंने हमेशा ही आगे रखा, हमेशा अपने प्रेम को रखो, बस प्रेम आगे रख करके फिर जो भी करना है वो करो। जहाँ प्रेम होता है वहां सब चीजें एक्सेप्ट हो जाती है, और जहाँ प्रेम नहीं आता है वहां पर फिर सब चीजों को लेकर के झगड़ा फसाद पैदा हो जाता है। चाहे वो, और सबसे पहले अगर मैरिज लाइफ ही गड़बड़ है तो फिर पेरेंटिंग तो ऑटोमेटिकली गड़बड़ होने वाली है। पेरेंट्स इटसेल्फ गड़बड़ है तो पेरेंटिंग सही कैसे होगी। Yeah. What is your idea or your understanding of a living master, living guru, सदगुरु, और उस पर आप कुछ बताएंगे? बहुत ही मजेदार है। हम्म। लिविंग मास्टर के साथ रहना इज नॉट अ इजी थिंग। क्योंकि लिविंग मास्टर हमेशा आपका ईगो तोड़ता रहेगा। आपकी कंडीशनिंग तोड़ता रहेगा। आपको वो पता नहीं कैसे आपके साथ करेगा, आउट ऑफ बॉक्स। तो लिविंग गुरु के साथ, लिविंग मास्टर के साथ रहना इज ब्लेसिंग। मजेदार, ब्लेसिंग। और साथ के साथ तैयार रहो। हाँ, 100। नो गुरुजी, मैं बहुत से लोग गुरुजी को जानते थे, जानते हैं, और बहुत से लोग बहुत प्रेम करते हैं, और बहुत से हम्म। लोग बहुत नाराज है और निकल गए। हाँ। तो हाँ। मैं, हम लोग जो है, मैं उनके साथ 25 इयर्स भी स्पेंड। तो मैंने दिमाग में एक सिंपल एक ही था, वो अगर जैन मास्टर है तो जैन मास्टर का कोई दिमाग नहीं लगाना है, बस उसका मजा लेते। तो लोग बोलते थे, मैं आपको बता रहा हूँ कि ही वुड रिपीट वन थिंग अबाउट हंड्रेड ऑफ टाइम। एक उनको कुछ एनलाइटनमेंट मिला तो वो 100 टाइम बताए। तो लोग आते थे, बैठते थे, मैं तो ये सुना हुआ है, तो निकल जाते थे। मैं बोला उसको, उनको थोड़ी सुनना है। उनके वाक्य के बीच में जो गैप्स है, शब्दों के बीच में गैप्स है, वो पीने का है। शब्दों को नहीं जाना है, वाक्य को भी नहीं जाना है। यू इम्बाइब दैट, द लाफ्टर, द साइलेंस, द गैप्स, द नुएंसेस, वो सब इम्बाइब करना है उनसे। तो अगर मुझे कुछ मिला तो वही गैप्स ही मिल रहा है। हंसते रहते, मतलब आई वुड जस्ट लाफ एट समथिंग, लाफ एट सेम थिंग, कि वो कितने सिंपल थे और सिंपल है, और कितने ट्रूथफुल है खुद पे प्रति। ही वुड से, ही वुड लाइक, मैं बोलता हूँ आई एम द ओनली गुरु, वो बोलते थे कि आई एम द ओनली गुरु हु कैन गो एंड डू सुसु एनीवे। यानी कि, यानी कि कोई इतने बड़े होके फिर वो नहीं जाना है, ऐसा ही मस्त है नहीं, ये फील्ड में चलते थे, वेट वेट वेट, मैं जाता हूँ, आता हूँ, मैं रुको इधर, लाइक दैट, ही वुड जस्ट बी लाइक अ नो बैड। सो इसीलिए मैंने वो प्रश्न आपको पूछा कि गुरु का एक आप। दिन मैंने स्वामी जी से कहा, स्वामी जी आप इतने सरल हो फिर भी लोग आपको समझ क्यों नहीं पाते। हम्म।
आप तो जैसे हो वैसे हो, कोई भी तो पर्दा नहीं, कोई चेहरा नहीं, क्यों नहीं लोग आपको समझ पाते? स्वामी जी बोले लेकिन लोगों को सरल होना आता नहीं ना, लोग सब औपचारिक जीते हैं तो उनको सरल व्यक्ति समझ में नहीं आता। हम्म। सब इतने जटिल हो गए, इससे माइंड में ही सब कुछ खिचड़ी पकाते हैं, तो उनको नहीं, और सरल व्यक्ति स्वामी कैसे जी को भी समझेगा? मैं मिला था जब फर्स्ट टाइम आप आए थे आश्रम में, तो उनको एक मतलब मैं तो आप आए और मुझे मुलाकात हुई 1 घंटे के बाद। तो वो 1 घंटे में वो एकदम गीले होके आए हैं। तो दैट वाज द ब्यूटीफुल पार्ट, व्हेन वी हग्ड, अरे ये तो गीले हैं क्योंकि वो स्नान करके आए, कोई शावर में, कोई फॉल चल रहा जन्नत था। में हाँ, तो दैट इज वाटरफॉल द में। ब्यूटीफुल, दैट्स द ब्यूटीफुल पार्ट। ऐसे ऐसे वो स्पॉन्टेनिटी में स्पॉन्टेनिटी में जीते हैं, और जैसा भीतर से आया वैसा करते हैं। कभी कोई परवाह नहीं, कौन क्या सोचेगा, कभी ऐसे नहीं। नॉर्मली सभी लोग सोचते रहते हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं। वो कहते हैं जैसे अंदर अपने साथ ईमानदार रहना बस, कौन बस क्या सोचेगा वो। BMJ। ब्यूटीफुल। बीएमजे बाद में बताना आप, ओके। हम हमेशा सबको बोलते हैं कि आई मीन दिस इज माय फेमस डायलॉग इज डोंट बिलीव मी, ओके। और बच्चों को भी मैं बोलता हूँ डोंट बिलीव मी, ओके। लेकिन हैव द करेज टू एक्सपेरिमेंट। और एक्सपेरिमेंट करने के बाद, और एक्सपेरिमेंट हर चीज का मैं बोलता हूँ 66 डेज, क्योंकि 66 डेज साइंटिफिकली बोलते हैं कि कुछ भी 66 डेज किया तो एक आदत बन जाती है। तो एक आदत बन गई, आपको वो आदत कंटिन्यू करना है, कीजिए। नहीं करना है, आपको अच्छा नहीं लगा, छोड़ दीजिए। तो ये लड्डू बहुत मीठा है। अरे मीठा है। हाँ, आप बोलेंगे मीठा नहीं है, मैं बोला ठीक है, आप नहीं, मीठा नहीं है, चख के तो देखो, तो एक्सपीरियंस तो करो। तो हमारा पूरा SSY सिद्ध समाधि योग, ऑल द प्रोग्राम्स अलोंग विद वॉट एवर आई से, आई एम जस्ट इंकरेजिंग पीपल टू एक्सपेरिमेंट फॉर 66 डेज। कुछ भी किताब पढ़ना है, ये करना है, ये साधना करना है, मेडिटेशन करना है, कुछ भी 66 डेज करके देखो। अगर आपको फायदा हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, आगे बढ़ो। अगर नहीं बेनिफिट हो रहा, भूल जाओ एंड गो on the path whichever you want. So this is my standard dialogue to everyone. So what do you have to say about something like this thing? Now it's a right way to teach and to tell about your theory and anything else, because if you starting में अगर आप कह दोगे बिलीव करो तो गड़बड़ हो जाएगा। Right. तो बिल्कुल सही है, बिलीव करने की बात ही नहीं है। मानो मत जानो, Hmm. मानो मत जानो, जानो और जिन बनो। Yes. जानना ही जिन बनना, ज्ञानी बनने का रास्ता है। और अगर मान ही लिया तो फिर जानोगी कैसे? जानना जिन तो के बस बारे में थोड़ा और, जिन के बारे में। जिन मतलब जिसने जाना, हम्म। वन हु एक्सपीरियंस्ड हिमसेल्फ, हम्म। उसको जिन बोला है। और जो जानने की यात्रा पे चला उसको जैन बोला है। जैन का संबंध कभी भी जाति, कुल, गोत्र, खानदान इससे कभी था ही नहीं, वंश परंपरा से कभी था ही नहीं। जैन होने का मतलब था, जैसे कोई साइंटिस्ट होता है तो साइंटिस्ट कोई भी हो सकता है, राजपूत भी हो सकता है, ब्राह्मण भी हो सकता है, बनिया भी हो सकता है, ऐसे ही जैन कोई भी हो सकता था। जैन होने का मतलब था साइंटिस्ट होना, रिसर्चर होना। खुद की जिंदगी पे हम खुद का एक्सपेरिमेंट करेंगे। और हमारा प्रश्न सबसे पहला ये होगा कि हम खुद को ही तो नहीं जानते। बाकी सबको तो हम जान रहे हैं, लेकिन हम खुद को ही नहीं जान रहे हैं। तो तो बहुत से हम बस लोग खुद बहुत को से जान। लोग एक्सपेरिमेंट, मतलब एक्सपेरिमेंट पूरा होने से ही पहले छोड़ देते। मतलब किसी ने बोला ये, कुछ भी ले लो, मेडिटेशन ले लो, प्राणायाम ले लो, कोई भी, ये नहीं चलता है, तो बहुत जल्दी से हम छोड़ देते हैं उस छोड़ पर। देते। क्या होता है, पेशेंस की कमी है। हम्म। विराट गुरु जी कहा करते थे कि ध्यान ढहे, धीरज बिसराए। अगर धैर्य छोड़ दिया तो ध्यान खत्म हो जाएगा। धैर्य जहाँ है वही धर्म हो सकता है। और पेशेंस के बिना हमने बीच में अधूरे में कोई चीजें छोड़ दी है, तो वो वाली स्थिति हो जाएगी कि एक आदमी है, उसको फल चाहिए, इसके लिए वो पेड़ रोपता है। लेकिन वो वृक्ष को रोपने के लिए पहले एक जगह पे गड्ढा खोदता है, फिर देखता है थोड़े दिन हो गए अभी तक तो वृक्ष आया नहीं, फल आया नहीं। तो वहां से हटा देता है, दूसरी जगह गड्ढा खोदता है, फिर दूसरी जगह से हटा देता है, तीसरी जगह गड्ढा खोदता है।
तो ऐसे जिंदगी भर वो 8 10 20 जगह गड्ढा खोद ले, लेकिन कहीं पर भी धीरज ना रखे तो क्या होगा? या उसने आज ही घर में मोर लाके रखा है और सोचा अरे मोर, मेरे घर मोर का अंडा आया है तो मेरे घर में कभी मोर आएगा, लेकिन रोज खोल खोल के अंडे को देखता है कि आज मोर फूटा क्या, मोर आया क्या, तो अंडा तो टूट जाएगा, कभी मोर आएगा ही नहीं। तो हमें धैर्य रखना होता है। कोई भी कार्य शुरू किया है तो आपने जैसे बताया, मैं 66 डेज का उनको एक टास्क देता हूँ। तो ऐसे हमें कोई भी कार्य शुरू किया है तो कम से कम 21 डेज है, 60 डेज, 66 डेज है, या 365 डेज है। तो हमें कोई तो एक पर्टिकुलर स्टेज तक हमें अपने आप को उस पेशेंस में, कंसिस्टेंसी में कुछ करना होगा, तभी हम उसके साथ गो थ्रू हो पाएंगे। और बीच बीच में छोड़ते जाएंगे तो कभी नहीं। पर क्या आज हमारे साथ पब्लिक क्या है, हम सब वो इंस्टेंट चाहिए, इंस्टेंट चाहिए। इंस्टेंट कॉफी, इंस्टेंट। हाँ हाँ, तो सब चीजें इंस्टेंट चाहिए तो हम, और हम बहुत जल्दी कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं। एकदम से जरा सा आज अनबन हो गई तो सीधा तलाक पे पहुंच जाते हैं, बस तलाक ही दे दो, बात खत्म हो गई क्योंकि इनके साथ मेरी बन नहीं रही। अरे धीरज रखो, हम सब लोग ग्रो कर रहे हैं, हम एक ही दिन में सब ग्रो नहीं कर जाते हैं, हम धीरे धीरे ग्रेजुअली ग्रो कर रहे हैं। हम माँ के पेट में थे तभी 9 महीने मम्मी ने धीरज रखा ना, वो 9 महीने तक हम ग्रेजुअली ग्रो करते गए। तो चीजों को होने में समय लगता है। अगर हम एक बात को समझ पाए और हम धैर्य के साथ और सतत एक ही दिशा में काम करते गए, तो वो दिशा हमें हमारे डेडिकेशन से हम कहीं ना कहीं तो पहुंचेंगे। व्यर्थ होगा तो व्यर्थता हमें नई दिशा में लेके जाएगी, सार्थक होगा तो हमारी जिंदगी में वो प्रकट हो ही जाएगा। और क्या व्यर्थ और क्या सार्थक है, बिना खुद पे प्रयोगों में उतरे हम नहीं पहचान पाएंगे। और खाली मानते रहे तो हम दब्बू बने रहेंगे, हमारी लाइफ में तो कुछ परिवर्तन नहीं आएगा। सबको उनको फिक्स्ड सिक्योरिटी चाहिए। तो हाँ। अगर गुरुजी को जो जो भी हम लोग साथ में रहे, तो ही वाज एपिटोम ऑफ हम्म। इनसिक्योरिटी। ओके, हाँ एग्जैक्टली। एपिटोम ऑफ इनसिक्योरिटी, एपिटोन ऑफ अननोननेस। तो जब भी हमारा ये 4 दिन का शिविर होता है, तो स्कोप कैंप या एएमसी हम लोग उन बाहर लेके जाते हैं किधर। मतलब ज्यादातर क्लास हॉल के अंदर नहीं होता है, बाहर ही होता है। कभी नदी में, कभी इधर, कभी खेतों में, कभी पहाड़ों में। तो इस तरह से लेके बोले अभी क्या शेड्यूल क्या है, शेड्यूल कुछ नहीं है, चलो साथ में चलो। तो लोग घबरा जाते, मेरे साथ भी घबरा जाते कि अभी क्या इधर लेके जाने वाला है। बट यू आर लाइफ, आपका और विकास जी का इज एपिटोम ऑफ अननोन। ओके, अननोन एग्जैक्टली। में आ, आज इधर है, कल उधर है, परसों किधर है, सो अ लिटिल बिट ऑन ये अननोननेस, इम्पोर्टेंस ऑफ लिविंग इन द अननोन। ये आप थोड़ा इस पर बता, एडवेंचर, अननोननेस। क्योंकि लोग जीवन सब का। कुछ चाहिए ना, सब कुछ फिक्स चाहिए, हाँ, फिक्स्ड। कुछ नहीं, वो चाहिए। ये फिक्स्ड, ये फिक्स्ड, ये फिक्स्ड। और वो अनफिक्स्ड में ही ज्यादा वो जो। मजा है। हाँ, 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 अगर हमें क्रिकेट देखने से पहले ही पता लग जाए कि इस क्रिकेट में कौन सी पार्टी जीतने वाली है, मजा आएगा क्या? अगर हमें मूवी स्टार्ट करने के साथ ही पता लग जाए कि इस मूवी में क्या क्या होने वाला और एंडिंग में यही होने वाला है, सब कुछ गेम फिक्स हो जाए, मूवी फिक्स हो जाए, तो फिर मजा क्या है? मूवी में मजा इसी बात का तो आता है कि पता नहीं अभी क्या दिख रहा है, अगला पल क्या आएगा, अगला पल क्या आएगा। पूरे लाइफ का रोमांच ही इस बात का है, फन ही इस बात का है कि हमें पता नहीं है अगला पल क्या आएगा। नहीं, इनफैक्ट आ, हंसी हंसी कभी आती है जब चुटकुला हाँ, चुटकुला क्यों होता है, जब एंड में ट्विस्ट होता है तभी तो हंसी तभी हंसी आती है। इसीलिए बहुत मजा है। विराट गुरु जी से मैंने ये सीखा, और स्वामी जी को तो लाइवली मैं वैसे ही देखती हूँ जैसे गुरु जी ने की शिक्षा थी, स्वामी जी एग्जैक्ट वैसे है। गुरु जी हमेशा क्या कहते थे, अक्रम जियो, क्रम में बंद करके मत जियो। विराट गुरु जी के दिए हुए 4 सूत्र आपके साथ शेयर करती हूँ, बड़ा मजा आएगा सबको। विराट गुरु जी से जब हम पूछते थे कैसे जीना, कैसे चलना, कोई भी पूछता, तो वो 4 बातें बोलते थे। वो बोलते बच के चलो, बच के चलो, जग के चलो, हंस के चलो, और अक्रम रहो। ब्यूटीफुल। बच के चलो नकारात्मक लोगों से, नकारात्मक स्थितियों से, जो आपको डाउन में ले जाए, उस सारे सिचुएशन से बच के रहो। बहुत सारी चीजें हैं जिसमें अगर आप इन्वॉल्व हो गए तो आप अपना आप नष्ट कर दोगे अपने जीवन ऊर्जा को। तो बच के चलो। फिर जग के चलो, बी अवेयर, ऑलवेज बी अवेयर, होश पूर्वक रहो। और हंस के चलो, सदा हंसते रहो। हंसने वाला आदमी प्रेजेंट में ही रहता है, दुखी आदमी हमेशा पास्ट या फ्यूचर में रहता है। हंसने वाला प्रेजेंट में बाय डिफॉल्ट वो हंसता हुआ प्रेजेंट में रहता है, और हंसता हुआ आदमी
ईगोलेस हो जाता है, और दुखी आदमी का ईगो उसके साथ जुड़ा हुआ ही रहता है। इस तो पर बच के चलो। इस पर दो चार और वाक्यों बताओ सच पे, क्योंकि ये पूरा साल का मेरा मंत्र है कि कुछ भी दर्द हाँ, लिया, दर्द हुआ हंसो, इमोशनल दर्द हंसो। इसे अच्छा स्माइल नहीं कर सकते तो हंस लो, हंस नहीं सकते तो जोर से हंसो, जोर से हंस नहीं सकते तो हंसो तो सही। बिल्कुल सही बोला, स्माइल नहीं कर सकते तो जोर से हंसो। ऐसा ही है, जो हंसता है ना वो ऑटोमेटिकली फैलता है। हंसने के साथ ही हम फैल जाते हैं, और फैलना हमारा स्वभाव है, वो हमारा गुण धर्म है। जैसे ही हम फैलते हैं वैसे ही हम विराट हो जाते हैं, हम अस्तित्व के साथ एक हो जाते हैं, अट्यून्ड हो जाते हैं। और जो अस्तित्व के साथ अट्यून्ड हो गया, हार्मनी में आ गया, उसको अपनी चिंता करने की जरूरत ही नहीं बची। पूरा अस्तित्व के प्रवाह के साथ वो आगे विकसित होता जाएगा। हम हम गिरते ही इसलिए, हम डूबते इसलिए, हम पतित इसलिए होते हैं, हम जीवन में फेलियर इसलिए पाते हैं क्योंकि हम सिकुड़ जाते हैं। So there is जैसे हम सिकुड़ one of the जाते हैं। one of the workshops we give, or joy shop, pain is beautiful। यानी कि हम्म। पेन इज ब्यूटीफुल मीन्स, अगर किसने, मैं हमेशा बोला कि अगर शरीर शरीर में दर्द है या तकलीफ है, किसने बोला कि आपको एकदम मायूस करके ऐसा मुंह बनाने का? वो शरीर में दर्द है, शरीर में दर्द है, आप तो हंस सकते हैं ना। हाँ। शरीर में दर्द है, आप तो हंस सकते हैं, स्माइल कर सकते स्वामी जी को सामने बोलो शरीर में दर्द है, तो स्वामी जी बोलेंगे शरीर इटसेल्फ दर्द है। हैं। शरीर में दर्द नहीं है, शरीर इटसेल्फ दर्द ही है। शरीर इटसेल्फ केज ही है। अब वो केज जो है वो सही कैसे हो सकती है? इसलिए इसकी परवाह मत करो, वो तो है ही केज। लेकिन हाँ, इसके अंदर एक तत्व है जो खिल रहा है, उसको खिलने दो। और स्वामी जी का बहुत प्यारा उनका उनका उनकी जो इंसाइट जो सबको, वो हम सबको मिल रही है। वो कहते हैं आप किसी भी चीज को पेन की तरह लेबल ही क्यों करते हो? जैसे आपने लेबलिंग कर दी, वैसे अब पेन के साथ जुड़ी हुई बाकी सारी चीजें, हमारा माइंड कंडीशनिंग तो है इसके अंदर, वो सारी पुरानी कंडीशनिंग के साथ अटैच हो जाएगा। आप लेबल ही मत करो, पेन हो रहा है, अब उसको बोलो चेंज हो रहा है। ब्यूटीफुल। भाई चेंज ही तो हो रहा है, भाई पेन क्यों हो राइट, रहा है, तो वो चेंज ही तो हुआ है। बस राइट। वो चेंज हो रहा है, आपने उसको पेन नाम देते ही आपने गड़बड़ी पैदा कर दी। तो डोंट से लाइक पेन, से चेंज, इट्स चेंजिंग एंड इट्स चेंजिंग एवरी टाइम, एवरी मोमेंट। इट्स नॉट चेंजिंग एट अ पर्टिकुलर टाइम और पर्टिकुलर डे, इट्स चेंजिंग ऑल द टाइम। हम थोड़ी कह सकते हैं आज मेरा बाल काले से सफेद हुआ भाई। हाँ, सफेद से काला आज हुआ ये तो कह सकते हैं, कहीं डाई किया। मैंने किया लेकिन है। लेकिन काला से सफेद जब हुआ, हम नहीं कह सकते पर्टिकुलर डे पे हुआ, पर्टिकुलर डेट पे हुआ, पर्टिकुलर टाइम पे हुआ, वो तो हो ही रहा है। एवरी मोमेंट इज चेंजिंग एवरीथिंग इन आवर बॉडी एंड outer of our body. So please don't label anything else like a pain, like a pleasure. Everything is change, और चेंज का मजा लो। तो तो बच आप के चलो, हंस के चलो, जग के चलो, और अक्रम रहो, विदाउट एनी ऑर्डर या एनी लिमिटेड सोच। आप एकदम जब अक्रम रहते हो, तो लाइफ के साथ आप प्रवाह में रहते हो, स्पॉन्टिनिटी में रहते हो, आप फ्लेक्सिबल रहते हो। जब फ्लेक्सिबल रहते हैं तो हम जीवंत रहते हैं, लाइवलीनेस रहती है हमारे में। और जितना लाइवलीनेस है, उतना ही वो व्यक्ति खुद भी मजे में है और उससे सबको मौज ही मिलती है। तो हमारा एक वो वाक्य है कि मैं पूरे जितने भी यादों से मुक्त हूँ, जो हमको डर पैदा करते थे, हम्म। लाइक यादों से, और मैं अपने शून्यता से जी रहा हूँ, लिविंग फ्रॉम जीरो, दैट वे। तो हर पल हम्म। में यू कम बैक टू जीरो, 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 जीरो। एंड दैट हम्म। वाज गुरुजी's फेमस महावाक्य। समबॉडी, मतलब सम बॉडी है तो बहुत तकलीफ, नो बॉडी है तो फ्रीडम, एंड फ्रॉम नो बॉडी ऑटोमेटिकली आप यू बिकम एक सबसे, so you become everybody, from हाँ। somebody to nobody to everybody। मैं सब में हूँ, हाँ, सब मैं हम में है। So this is all अच्छा। these basic things, that's why I fell in love when I was, or rather I rose in love with Guruji the day I met him on 25, when we were 25 years old, and that's this is my place, because उन्होंने कभी भी
ये सही है, ये सही नहीं है, कभी बोला ही नहीं, सिर्फ बोले आप So, अनुभव करो और अनुभव करते करते इन लव। 25 के थे तब आप ओल्ड थे? मैं तो सोचे यंग होंगे आप। हाँ, 20 When you 25 were years back, 25 to 25 years back, okay. right, 25 years, हम लोग जनरली बोलते थे कि I am 25 year old. No, no, I am 25 year young. right. Why old? We are और not old. यू हैव रिटन अबाउट 40 बुक्स, 40 बुक। सो अभी आप जब वो किताब पढ़ते हैं, कोई पढ़ते हैं, तो उससे और आपका जीवन से क्या कनेक्शन अभी? आई मीन, इफ यू हैव टू लुक बैक 40 बुक्स यू हैव रिटन, एंड इफ यू वर टू रीड द बुक्स अगेन एंड along with हम्म the life you are living, is it matching, not matching, or what? हम्म। ऐसा है ना, बहुत तरह की बुक्स लिखी, कुछ शास्त्रों की व्याख्या लिखी, कुछ उपनिषदों की व्याख्या लिखी है, कुछ सूत्रों पे लिखी है, और कुछ एकदम लाइफ से कनेक्टेड है। और मंथली मैगजीन भी निकलती थी हमारी, चरम मंगल इसी नाम से। चरम मंगल नाम से मेरा प्रीवियस यूट्यूब चैनल भी है, और चरम मंगल नाम से हमारी संस्था थी, चरम मंगल नाम से ही मैगजीन निकलती थी फ्रॉम द 2007 टू 2020। Hmm. ऑलमोस्ट कितने इयर्स हो गए ये? 14 years. 14 इयर्स तक हर अंक विशेषांक देते थे। हर Hmm. मैगजीन का हर इश्यू कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक को समर्पित होता था। जैसे हमने फैमिली ले लिया तो पूरा फैमिली, क्रोध ले लिया तो पूरा क्रोध, परिग्रह शब्द लिया तो पूरे परिग्रह पे मैगजीन, ऐसे। तो 40 बुक्स के साथ इसके सिवा बहुत मैगजीन्स का जो लेखन कार्य था वो भी होता था। और मैं अगर ये देखूं पिछली कि मेरी टीचिंग्स और मेरी लाइफ जो है उसके अंदर, आप बोल रहे हो कि मैगजीन को पढ़ के या बुक्स को पढ़ के आपको क्या लगता है। मुझे बड़ा मजा आता है, क्योंकि वो चीजों ऐसा होता है ना कि जब अपन 8th क्लास में थे तो 8th की पढ़ाई करके मजा किया, 10th में आए तो 10th की पढ़ाई करके मजा हुआ, 10th से हम 12th में आए तो 12th का मजा हुआ। ये सब स्टेप बाय स्टेप होता जा रहा है ना। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं तो हैरान होती हूँ कैसे बचपन से मुझे इसमें रुचि आई, संस्कृत में, प्राकृत में, साधु संतों में। बचपन से मुझे ऐसा होता था हिंदी याद करने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन संस्कृत का श्लोक याद करने में तो टाइम ही नहीं लगता था, वो 2 बार सुनो और याद हो जाता। Wow. हिंदी को 4 बार सुनो तो याद हो, ऐसा होता था। तो ऐसे कैसे हो रहा है, आई डोंट नो। ये जर्नी हमको अपना आप से स्टेप बाय स्टेप लेके जा रही है। तो जहां तक मैं आई हूँ, सारे पिछले सारे स्टेप्स का योगदान है, सबका सहयोग मिला, आनंद का भोग मिला, दिल में उजास खिला, सुंदर सा आज मिला, दानी उत्साह के गुरुवर को धन्यवाद, धन्यवाद 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 धन्यवाद, यस। सबका धन्यवाद। धन्यवाद बोले तो उस पर ही आप बोलो, ग्रेटिट्यूड के ऊपर कुछ बोलिए, इम्पोर्टेंस ऑफ व्हाट इम्पोर्टेंस मैंने एक्चुअली वही है, लेकिन फिर भी कॉन्शियसली हम लोगों को बोलते हैं। विराट गुरु जी की लिखी हुई एक छोटी सी पोयम है, कविता है, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। पृथ्वी को धन्यवाद, पानी को धन्यवाद, अग्नि को धन्यवाद, वायु को धन्यवाद, हरितक को धन्यवाद, त्रस प्राणी धन्यवाद, धन्यवाद 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 धन्यवाद, सबका सहयोग मिला, आनंद का भोग मिला, दिल में उजास खिला, सुंदर सा आज मिला, दानी उत्साह के गुरुवर को धन्यवाद, धन्यवाद 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 धन्यवाद, प्यारे माता पिता, प्यारी संतान हो, बढ़िया हमदम रहे, सभ्यों में शान हो, प्यारा पड़ोस हो, परिजन को धन्यवाद, धन्यवाद 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 धन्यवाद। ब्यूटीफुल। दी एक्चुअली मैं नॉन जैन हूँ, लेकिन मैंने मतलब 4 साल लगाए हैं यहाँ पे लुधियाना में। नीलम जैन जी हैं, मुमुक्षु मंडल के वो है मेंबर मेन। तो उनके अंडर मैंने जैनिज्म को काफी हद तक जाना है, क्लोज से देखा। तो उसमें 3 चीजों की बात की जाती है: सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। तो इसमें आपने बोला कि आप पहले जैन समाज में, मतलब जैन साधु के बीच में आपने लाइफ स्पेंड की, उसके बाद आप ओशो वाली लाइन आए। तो ये टोटली एक विरोधाभास है दोनों चीजों में।
क्योंकि वहां पे बहुत सारी चीजों को rejection दिया जाती है, यहाँ पे किसी भी चीज को रिजेक्शन नहीं दिया जाता। तो आपने मतलब बात में वही आ जाती है कि इन चीजों को कैसे एक इंसान एक्सेप्ट कर सकता है, इतनी जैसे आपने एक्सेप्ट किया मतलब जैनिज्म से इधर आए ओशो में, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो समाज में एक बर्दाश्त के लेवल से बाहर हैं, जिसमें समाज मतलब बोलता है, जैसे ओशो ने बोला कि मैं तुम्हें तुम्हारे गुरुओं से सावधान करता हूँ, तुम मेरे चेलों से सावधान रहना। तो आप समझ सकते हैं कि मैं किस टॉपिक पे बात कर रही हूँ। तो उस चीज पे आप मतलब कहाँ पे वो आप कहाँ पे इसको ट्रुथ मानते हो, कितना ट्रुथ है ये? ऐसा है वंदना जी, अगर आपका सवाल ये है कि मैं जैनिज्म से ओशो में आई तो मैं कितना ट्रुथ मानती हूँ, तो मैं क्यों मानूं किसी भी चीज को जब मैं जान सकती हूँ। जब हम जान नहीं सकते तभी हम मान्यता में जाते हैं, एक बात। दूसरी बात, ट्रुथ का संबंध व्यक्ति या संस्था या सिद्धांत से नहीं है। ट्रुथ का संबंध हमारे अपनी स्थिति से है। अगर आपकी प्यास सच्ची है, आपको सच्चा पानी मिलता है। अगर आपकी प्यास किताबों की है, आपको किताबों का पानी मिलता है। अगर आपकी प्यास केवल शब्दों की है, आपको शब्द ही मिलेंगे। अगर आपकी प्यास सहारा ढूंढने की, तो आपको सहारे मिलेंगे। सांत्वना ढूंढने की तो सांत्वना मिलेगी, और समाधान ढूंढने की तो समाधान मिलेगा। आपकी प्यास कैसी है? आई एम सो ब्लेस्ड कि मेरी प्यास मुझे एक सत्पुरुष के पास लेकर आई। वो ओशो के फॉलोवर नहीं है, वो ओशो के प्रेम में है, लेकिन वो फॉलोवर नहीं है, क्योंकि उन्होंने किसी को फॉलो किया ही नहीं। स्वामी जी इज नॉट अ फॉलोवर ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन, एनी पर्सन, एनी रिलीजन। उनका भी जन्म जैन परिवार में ही हुआ। वो भी एक अपनी सामाजिक जिंदगी को जीते हुए एक सक्सेस की पीक पर पहुंच करके उनको जब समझ में आया कि ये सब फ्यूटाइल हो गया, सब नॉनसेंस है, सब रबिश है, सब कुछ करके भी हम अपने में खुश नहीं हुए, तो उन्होंने सर्च अपने अंदर किया। हाँ, उनको अपने भीतर सर्च करने में जो मेडिटेशन की टेक्निक्स जिनका उनको उस समय सहयोग मिला, वो ओशो के तरह डेवलप की गई टेक्निक्स है। तो वो ओशो की फिलोसफी में नहीं गए, वो डायरेक्ट उनके मेडिटेशन टेक्निक्स के साथ उनका साक्षात्कार हुआ, और वो मेडिटेशन की टेक्निक्स में गए, और वहां उन्होंने 100% अपने आप को टेक्निक में समर्पित किया, और उनके भीतर कुछ एक्सप्लोर हुआ। तो उन्होंने सच्चाई को अपने अनुभव से, अपने प्रयोगों से जाना और जिया। हाँ, उसमें ओशो की टेक्निक्स उनके लिए योगदान बनी, और टेक्निक्स, ओशो की मेडिटेशन की जो टेक्निक्स है, स्वामी जी खुद बोलते हैं कि मेडिटेशन टेक्निक्स इज जस्ट लाइक अ मेडिसिन। और जैसे मेडिसिन किसी धर्म की नहीं होती है, हम बीमार होते हैं तो हमने बुखार हुआ तो हमने क्रॉसिन ली, हमने कभी नहीं पूछा वो क्रॉसिन हिंदू है कि मुस्लिम है, क्रॉसिन ओशो की है या जैन की है। क्रॉसिंग इज जस्ट ए मेडिसिन। मेडिटेशन टेक्निक्स इज जस्ट लाइक अ मेडिसिन। और जब आप मेडिसिन को लेते हो और आप ठीक हो जाते हो, तो आपके लिए मेडिसिन बहुत मजेदार है, क्योंकि वो उसने आपको अपनी बीमारी से मुक्ति दे दी। तो आई एम नॉट इन द फॉलोइंग ऑफ ओशो पाथ या इन द फॉलोइंग ऑफ एनीवन एल्स पाथ। मेरे अपनी आंख खोल करके मैं जी रही हूँ, और मैंने अपने अनुभव से जो जाना है उसके साथ जी रही हूँ। तो जो आपने बोला, ओशो ने कहा कि गुरुओं, मैं तुमको तुम्हारे गुरुओं से सावधान करता हूँ, तुम मेरे चेलों से सावधान रहना। तो क्या ओशो के चेलों से मुझे सावधान या किसी को सावधान रहने की जरूरत है? आपको किसी और से सावधान रहने की जरूरत नहीं है, आपको अपने आप में सावधान हो जाने की जरूरत है। जब आप अपने आप में सावधान हो जाते हो, तो आपका दर्शन सम्यक दर्शन हो जाता है। और एक बार दर्शन सम्यक हो गया, तो ज्ञान और चारित्र तो ऑटोमेटिकली सम्यक होता ही है। दर्शन सम्यक होने का मतलब ही क्या है कि आपने अपनी दृष्टि पर कोई मान्यताओं का आवरण नहीं डाला। नो prejudices and no any type of conditionings, no any type of beliefs, no belief systems। आप देखो, खुली आंख से देखो, फिर आपकी आत्मा खुद ही गवाही देगी। आपके भीतर की प्यास सच्ची है, तो आप झूठ से गुजर के भी सत्य तक पहुंच जाओगे, लेकिन आप सत्य तक पहुंचो, ये महत्वपूर्ण बात है। और सत्य कहीं क्योंकि हमारी जिंदगी दोनों और है, भीतर भी और बाहर भी है। अगर हम जागरूक होंगे तो हमें भीतर भी नजर आएगा, बाहर भी नजर आएगा। और अगर हम ईमानदार होंगे, तो हमारी ईमानदारी हमको सही रास्ता दिखाएगी ही। ईमानदार व्यक्ति को सही रास्ता मिलता ही है। मैं बहुत अपने अनुभव से बात बोलती हूँ। बहुत सुंदर वैभव जी, थैंक यू वंदना जी,
थैंक यू। एंड एक बहुत अच्छा वीडियो कल आया था, जागृति ने भी देखा होगा, जिसमें मीनल जी हमें बता रही थी कि जब कोई ये बोलता है ना, मुझे सच्चा प्रेम नहीं मिला, तो आपको वो बाहर ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। वो आपके खुद के अंदर ही आपको खुद के लिए सच्चा प्रेम नहीं है, इसलिए आप शिकायत कर रहे हो मुझे सच्चा प्रेम नहीं मिला। सो आपने जो बोला अभी वैभव जी, मुझे उससे वही बात उनकी याद आई कि वो मेरे पॉट में बैठा है इसलिए मुझे बाहर दिख रहा है। सो दैट्स हाउ। यस जागृति, योर क्वेश्चन। ओके, तो आपकी सभी बातें सुनी मैंने। और मेरी भी एक बहुत करीबी दोस्त थी, है अभी कॉलेज में, और उसकी बहन ने दीक्षा ली थी जब वो 6th या 5th या 6th स्टैंडर्ड में थी। पर ना ही वो जैन थी, ना देरावासी, ना स्थानकवासी, कुछ भी नहीं। शी वॉज जस्ट अ तेलुगुइट। पर उन्होंने पता नहीं किसी को बिना बताए उसने दीक्षा ली। वो वहां गई, 1 साल 2 साल रही, फिर वो वापस आई। वो दीक्षा वहां पे उसको नहीं जमा कि क्या पता नहीं है, पर वो वापस मटेरियलिस्टिक लाइफ में आई। और अब अभी उसने शादी भी की, बच्चे भी किए। तो ऐसा वहां पे क्या हुआ या क्या होता है, इतनी कठिन जिंदगी होती है कि क्या होता है कि लोग मटेरियलिस्टिक लाइफ छोड़ के वहां जाते हैं दीक्षा लेके, और वापस वो आ भी पाते हैं। ऐसा है ना जागृति जी, अगर आप क्वेश्चन अपने लिए पूछो तो बड़ा मजेदार होगा, क्योंकि आपके लिए पूछा हुआ क्वेश्चन आपको हेल्पफुल रहेगा। और जो आपकी फ्रेंड की सिस्टर के साथ हुआ, आई डोंट नो अबाउट हर ना, तो मैं उसके बारे में क्या बोल सकती हूँ। लेकिन अगर आप ये बोलते हो साधु जीवन में क्या होता है, तो सबके पास अलग अलग स्थितियां मिलती है। मैं किसी को ब्लेम नहीं करूंगी, सब अलग अलग लेवल के लोग हैं वहां पर भी। और वहां पर बस इतना कहूंगी कि अगर आंख वाले लोग होते तो मजेदार स्थिति होती, लेकिन आंख वाले लोग नहीं होने की वजह से वो लोग भी सब किताबों ज्ञान से परंपरागत क्रियाओं को करते हुए खुद की ओरिजिनलिटी को ना जी करके कुछ और जी रहे होते हैं, इसलिए वे भी कंफ्यूज है। अब उन कंफ्यूजन्स में किसी के कंफ्यूजन्स कितने हैं कैसे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बीमार तो बीमार है। और उन बीमारों में से कोई निकल जाता है तो जरूरी नहीं है वो स्वस्थ होने के लिए निकला हो। क्या पता वो एक कंफ्यूजन से निकल के दूसरे कंफ्यूजन में चला गया हो। सब अपनी अपनी लाइफ के लिए जिम्मेदार है ना, हम किसी और की बात कैसे कर सकते हैं, नहीं, वो वो अपनी भी लाइफ के लिए सत्य जिम्मेदार में, है। हाँ वो भी सत्य में थी। अगर हम भी हमारे जीवन में, मटेरियलिस्टिक जीवन में भी हम सत्य है, पर ये सत्य की जो राह होती है वो इतनी कठिन क्यों होती है? इतने सारे कॉन्सिक्वेंसेस क्यों हमें बेयर करने पड़ते हैं जब हम सत्य की राह पे चलते हैं? देखो, पहली बात तो मुझे नहीं पता आप ये सत्य की राह किसको कह रही हो। मतलब जो भी है हम सच बोल देते हैं, नो ऐसा है ना, मैनिपुलेशन उसमें। कठिन तो हम है, कठिन सत्य नहीं है, कठिन हम है, इसलिए हमको सत्य कठिन लगता है। झूठ इसलिए आसान लगता है क्योंकि झूठ में सुविधा दिखाई पड़ती है, झूठ में सुविधा प्रतीत होती है ना। झूठ में हम ईगो सेटिस्फाई खुद का भी कर रहे होते हैं, दूसरों का भी कर रहे होते हैं, तो हमको एक नहीं सुविधा नहीं नहीं लगती है। नहीं, झूठ में हम सत्य, तालमेल बिठा पाते हैं। नो आई एम नॉट सेइंग कि सत्य कठिन है। सत्य बहुत आसान है, उल्टा झूठ बोलने से तो सत्य आसान है। हाँ पर जब हम वो आसान रास्ता लेते हैं तो उसमें डबल कठिनाई आती है। हाँ, तो कॉन्सिक्वेंसेस यही बहुत ही कहूंगा। एडवर्स होते हैं। नहीं, कॉन्सिक्वेंसेस कभी एडवर्स नहीं होते, थोड़ा सा हम क्लियर करेंगे। झूठ की राह में स्टार्टिंग में मजा लगता है, लेकिन बाद में आप तनाव में जाओगे, बीमारी में जाओगे, आप अपने आप से ही टुकड़े टुकड़े हो जाओगे, क्योंकि झूठ आप हो नहीं और आप झूठ बराबर। बन गए हो। तो आप खुद से ही टूट जाओगे, है ना, तालमेल अंदर की खत्म हो जाएगी। सत्य की राह में क्या होगा, स्टार्टिंग में कठिनाई लगेगी क्योंकि बाहर के लोगों के साथ तालमेल नहीं बिठ पाएगी, लेकिन बाद में आपके अपने भीतर जो हार्मनी आ जाएगी, अपने भीतर जो सच्चाई और प्रामाणिकता और ईमानदारी और हल्कापन आएगा, वो हल्कापन आपके लिए बस वही गिफ्ट है। दूसरा क्या बोलता है वो छोड़ो, आपके भीतर जो हल्कापन आया ना, वही आपका रिवॉर्ड है और वही आपको मजा देगा। तो आपकी सत्य मौज में ले जाता है, झूठ तनाव में ले जाता है। स्टार्टिंग में झूठ मजेदार लगता है, एंड में बिगाड़ देता है। सत्य स्टार्टिंग में कठिन लगता है, लेकिन एंड उसका मजेदार ही होता है। अगर कोई वाकई सत्य को जीता है तो उसके भीतर निर्भीकता ऑटोमेटिकली आती है, फियरलेसनेस ऑटोमेटिकली आता है, अगर वो अपने सत्य को जीता है तो। और अपने सत्य को जीने का मतलब क्या है, जैसा भीतर वैसा बाहर। तो हम इन पर्दा नहीं करेंगे, हम औपचारिकता नहीं करेंगे। I will just add one line or two, three lines कि only when we the moment we say I am in Satya or Asatya,
we are in somebodyness. When you are nobody, then there is nothing like Satya, nothing, whatever. Nobody means love. Okay? If you are in love, that is Satya. A person, a Hindu will save a Muslim's life, and he says Guruji would give the example. Someone comes and you are saving the Muslim's life. Vice versa, or Muslim is saving Hindu's life and say, झूठ बोलेगा, मेरे घर में तो कोई है ही नहीं, हो ही नहीं, लेकिन हालांकि है, उसने जान बचाया, तो that is highest Satya. Prem is the only Satya. There is no other Satya in life. Okay, and you are talking from I speak truth. No, that is from your side truth. Outside also is truth. हालांकि आपके हिसाब से वो झूठ बोल रहा है, वो झूठ नहीं, उनकी तरफ से वो सत्य बोल रहा है, आपकी तरफ से वो सत्य है. So Satya is only one. Satya equals love, unconditional love. बस, that's all. Starting, ending. What? Yes, Vaibhav ji. Yes, yes, yes. We were. Yes, Rohit ji. जी, थैंक यू। वैभव जी, मनोज जी आज दोपहर को आपके बारे में हमसे कुछ शेयर कर रहे थे यहाँ पर गुरुकुल में ग्रुप के साथ। सो आई लुक्ड एट सम ऑफ योर वीडियोस इन यूट्यूब, और अभी आपको यहाँ पर देख रहा हूँ। आई जस्ट वांटेड टू शेयर दैट कि आप बहुत सुंदर दिख रहे हो। यू आर लुकिंग वेरी वेरी ब्यूटीफुल वैभव जी इन दिस अवतार ऑफ योर्स। Thank you, thank you. और आपकी बातें और आपके विराट जी के और विकास जी के शेयरिंग्स भी बहुत दिल को छू जाने वाले शेयरिंग्स थे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट वैभव जी। मुझे सिर्फ एक सवाल पूछना था आपसे कि आफ्टर ऑल ऑफ दिस जर्नी आप जहां पर है इस वक्त, व्हाट इज योर साधना रिकमेंडेशन फॉर अ गृहस्थी, फॉर इवोल्यूशन? आप क्या रिकमेंड करते हो? हम गुरुजी से मेडिटेशन वगैरह के बारे में सुनते हैं, मनोज जी से सीखते हैं, आपका क्या साधना रिकमेंडेशन है वैभव जी? दो बातें हैं। एक, कम से कम 1 घंटा रोज खुद को दीजिए। 1 घंटा हम खुद के लिए जिए, क्योंकि 23 घंटा हम बाकी सारे रोल प्ले करने के लिए जीते हैं, बिजनेसमैन, फादर, हस्बैंड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन 1 घंटा कम से कम खुद के लिए दें, जब हम कुछ और ना हो, सारे मास्क उतार करके खुद के साथ बैठ सके। तो उस 1 घंटे में मेडिटेशन की टेक्निक्स की जा सकती है, खुद को पढ़ा जा सकता है, खुद से बात की जा सकती है। देयर आर सो मेनी टेक्निक्स टू कनेक्ट विद आवरसेल्फ। और दूसरी बात कि जो लाइफ में आप जो कुछ भी कर रहे हो उसमें खुद के साथ ईमानदार रहो। खुद के साथ ईमानदार रहने का मतलब अपने साथ सच्चा रहना। जैसा मैं हूँ वैसा हूँ। फिर मैं मास्क ओढ़ के ना जिऊं, किसी को प्लीज करने के लिए ना बोलूं या करूं, किसी से डर करके कुछ ना करूं। मैं ईमानदार, अपने साथ ईमानदार, बस। Yeah, I call it be vulnerable. Vulnerable means like a child. He will cry whenever, he will laugh whenever, he will do anything. नाचेगा, गाएगा, ऐश करेगा, और क्या. Beautiful. मनोज जी की हंसी बहुत प्यारी है, हाँ? No, we are mutual admirers of the Hasi. Okay. Yeah. Yeah. Yes. वैभव जी, मेरा एक प्रश्न था यस कि प्रकाश। क्या मंत्रों से मंत्रों का मन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, और क्या मंत्र आदमी की स्थिति को बदल सकते हैं? ये मेरा प्रश्न था। प्रश्न है कि क्या मंत्रों का मन पर कोई प्रभाव पड़ता है? जी हाँ, पड़ता है। क्या मंत्र हमारी स्थिति को बदल सकते हैं? कुछ हद तक, कुछ हद तक बदल सकते हैं। दोनों में मैं हाँ बोल रही हूँ। लेकिन क्या आज कंटेम्परेरी है हमारे लिए मंत्र साधना करना? नहीं, क्योंकि आज हमारा माइंड का मैकेनिज्म बहुत डिफरेंट तरीके का हो चुका है। वी आर सो स्मार्ट एंड सो फास्ट। तो जो मंत्र साधना किसी एक टाइम में मंत्र के थ्रू हम ध्यान में प्रवेश करते थे, आज मंत्रों के थ्रू ध्यान में जाने की बजाय दूसरी और ध्यान की विधियां हैं, जिसके थ्रू हम अपने आप के लेयर्स को निकाल सकते हैं, अपने लेयर्स से बाहर आ सकते हैं। तो वो विधियां ज्यादा उपयोगी रहेगी। ऐसी कंटेम्परेरी कई सारी टेक्निक्स जो ओशो ने डेवलप की है, वो बहुत हमारे लिए यूजफुल है। अगर आप उसको करके देखें खुद प्रैक्टिकल, तो आपको अनुभव होगा। तो किसी समय मंत्र साधना बहुत मजेदार थी, हमारे लिए उपयोगी थी, लेकिन आज वो थोड़ा पुराना चार्ट हो जाएगा। जैसे आज हमको अगर जर्नी करनी है तो गूगल को हमें यूज करना होगा, क्योंकि ये जीपीएस हमें गाइड करेगा। अगर पुराने नक्शे को लेके चलेंगे तो वो रास्ते ही नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो रास्ते जा चुके हैं। तो आज को हमें नए रास्ते यूज करने चाहिए। बट हाँ, मंत्र साधना का
अपना इम्पैक्ट हुआ करता था और आज भी हो सकता है थोड़ा बहुत, पर ज्यादा हमारे लिए यूजफुल नहीं रहेगा। थैंक यू, थैंक यू। यस नारायण जी। And even Prakash ji, mantra, it depends with what bhava you are using it, तो कितना भाव से आप करते हैं मंत्र, जो राम 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 राम, देन गुरु जी बोलते थे दैट मच ओनली वर्ड इफेक्ट आएगा, वो फिर भी है इफेक्ट, लेकिन ओनली द वर्ड, फिर भाव से, फिर विजन, सो हाउ डीप यू यूज इट, विद व्हाट भाव यू यूज, वो उसमें बहुत फर्क पड़ता है। यस, यस नारायण जी। You said you are living like you have become a sannyasi at a very young age. How was your life as a sannyasi, and did you feel that maybe you wanted to experience growth married life for some time? Do you think you made some mistake, or do you think being a sannyasi is better and it is easy for spiritual sadhana than being a married life? Can you please elaborate on that? I took sannyas at the age of 19.5. 19.5 साल की थी, 20वें साल में चल रही थी, तब मैंने संन्यास लिया था। और उस टाइम भी मुझे एक अंडरस्टैंडिंग थी कि संन्यास भी एक रास्ता है मुक्त होने का, गृहस्थ भी एक रास्ता है मुक्त होने का। बट मैं अपने नेचर के अकॉर्डिंग उस टाइम जो पा रही थी, मेरे लिए संन्यास मुझे सही रास्ता लग रहा था, सो आई एक्सेप्टेड दैट वे। और वहां जाकर के मुझे इस बात के लिए गिल्ट नहीं हुआ कि मैंने संन्यास क्यों लिया। इस बात के लिए गिल्ट हुआ कि संन्यास में जो स्थितियां मुझे मिल रही है, मैं इस स्थिति के लिए नहीं आई थी, मैं कुछ और स्थिति के लिए आई थी, और वो स्थिति मुझे वहां उस वक्त नहीं मिली। फिर उसके बाद में मिली, मैं बहुत मजे से रही वहां पे, और बहुत ईमानदारी से अपने आप को जिया। इसीलिए उस ईमानदारी का परिणाम रहा कि मेरे भीतर अपनी नेक्स्ट लेवल की जर्नी करने के लिए मुझे नेक्स्ट निमित्त मिला। अभी मैं गृहस्थ लाइफ में आ गई हूँ। अगर कोई ऐसा बोले तो हाँ, कपड़ों से कह सकता है, अटायर से कह सकता है, लेकिन मेरे लिए तो एक सन्यासी के साथ रहना है ये। मेरे लिए गृहस्थ लाइफ माना नहीं है, लेकिन चूंकि जो जैन सोसाइटी का, जो जैन साधु साध्वी का जो तरीका है, उस तरीके में रहते हुए मैं स्वामी जी के साथ नहीं रह सकती थी, क्योंकि वहां पर वो चीज अलाउड नहीं है। तो मैं स्वामी जी के साथ अपनी नेक्स्ट जर्नी करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने वो वेश छोड़ा। वो छोड़ने के पीछे कारण ये नहीं था मेरे लिए कि मुझे उस समाज से या उस सन्यास से या उस स्थितियों से कोई शिकायत या कोई घृणा या कुछ भी है। बस वो कोर्स कंप्लीट हो गया और मेरे को अपनी नेक्स्ट लेवल के लिए वहां पे कोई ऑप्शन नहीं था। उसके लिए मुझे जो सहयोग चाहिए था, वो मुझे स्वामी जी के रूप में जो मिला। और मुझे स्वामी जी के साथ अगर रहना है तो दो बातें पॉसिबल नहीं हो पा रही थी, इसलिए मैंने स्वामी जी के साथ रहने के लिए अपना वो पुराना सारा जो मेरा कंडीशनिंग थी और कनेक्टिविटी थी, उससे मैं बाहर आकर के मैं स्वामी जी के साथ जी रही हूँ। अब आप पूछ रहे हो कि क्या गृहस्थ जीवन से भी मुक्त हो सकते हैं, साधु जीवन से भी? दोनों से मुक्त हुआ जा सकता है। तो गृहस्थ से होना ज्यादा आसान लगता है मेरे को, क्योंकि वहां पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए, वहां पे खुद को जीने के लिए आपको बहुत हद तक फ्रीडम है। साधु जीवन में वैसी फ्रीडम होना बहुत मुश्किल है। जबकि बने तो साधु फ्रीडम के लिए थे, लेकिन वो तो सब बॉन्डेजेस में है, बहुत तरीके की बॉन्डेजेस में है। गृहस्थ तो बहुत हद तक फ्रीडम प्राप्त कर सकता है अपने ही वातावरण में, और वो खुद को जीने के लिए, खुद को एक्सप्लोर करने के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज को अवेल कर सकता है। तो फ्रॉम द माय पर्सनल व्यू, मैं ये रिकमेंड करती हूँ कि आप किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, आप वो देखो जहां आप अपने आप के साथ ईमानदारी से खुद को जी सकते हो। क्या पता किसी के लिए एकांत में रहना उसको मजा लगता है, क्या पता किसी को साधु जीवन मजा लगता है, और क्या पता किसी को सबके बीच में रहते हुए भी अपने आप की साधना करना। आप अपने लेवल पर आपको क्या ठीक लगता है। हाँ, लेकिन मेरा पर्सनल व्यू है कि जहाँ आपको खुद को एक्सप्लोर करने का, खुद को जीने का फ्रीडम मिलता है, वो एक्सेप्ट करना, वो चूज करना। तो गृहस्थ जीवन में ज्यादा ये आसानी लगती है मेरे को बजाय साधु जीवन के। ये मेरा पर्सनल व्यू है। बहुत सुंदर। ब्यूटीफुल। यस नेहा जी। जय गुरुदेव। मेरा नाम रुपेश है, एंड वैभव जी, बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुआ हूँ मैं अभी तक जितना भी सुना। मैं जन्म से जैन हूँ, और बट समहाउ जैसे आपने अपना बचपन का बोला था, आई कुड नॉट कनेक्ट कंप्लीटली टू द ऑल द रिचुअल्स ऑफ जैनिज्म इन माय चाइल्डहुड। तो मैं सॉर्ट ऑफ रिबिलियन चाइल्ड था इन टर्म्स ऑफ रिलीजन की बातों में। जो कर्मकांड करते थे, तो कोई अट्ठाई करने वाला है तो अट्ठाई के बाद 9वें दिन मैं पाव भाजी खाऊंगा, ये मन में ध्यान रख के करता था। जब मैं 8-9 साल का था, तभी मैं उनको चैलेंज करता था कि ये क्या है, मतलब अगर तपस्या है तो फिर तुमको ये क्यों याद आ रहा है। एंड आई वाज लाइक एक रिबेलियन चाइल्ड, बट मुझे कभी उसके उत्तर मिले नहीं।
उस चक्कर में क्या हुआ कि वो छूटता गया। जो कर्मकांड हम करते हैं या जो रिचुअल्स करते हैं जैनिज़्म में, आई नो बहुत ब्यूटीफुल होता है, व्याख्यान बहुत बहुत अच्छा होता है, बहुत सारे गुरु बहुत अच्छा समझाते हैं, बट समहाउ वो प्रश्नों के उत्तर ना मिलने की वजह से छूट जाता है। तो अभी तो वो तो मेरा कंडीशन था, बट नाउ आई एम अलाइन्ड विथ एसएसवाई एंड नाउ अभी मैं जैनिज़्म को इम्पोर्टेंस दे पा रहा हूँ। एसएसवाई करने के बाद मुझे समझ में आ रहा है कि वहाँ पे भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें थी, जो जिसके उत्तर मिल रहे हैं। मेरा एक क्वेश्चन था कि पास्ट रिग्रेट के लिए आप कुछ पास्ट रिग्रेट्स को लेके, जैसे मैं मेडिटेशन करता हूँ, जो भी करता हूँ, बट समहाउ समथिंग इज़ कमिंग अप अगेन एंड अगेन, पास्ट रिग्रेट्स। तो उससे मुक्ति का क्या मार्ग है? आइदर जैनिज़्म के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके जो भी अनुभव है उसके हिसाब से। ऐसा है ना, आप क्या मेडिटेशन करते हैं हमें नहीं पता, लेकिन आप अगर मेडिटेशन की कुछ टेक्निक्स स्वामी जी से गाइडेंस लेकर के करना शुरू करेंगे, तो फिर हम इस माइंड के मैकेनिज्म को भी समझ पाएंगे और माइंड से बियॉन्ड माइंड हो पाएंगे। जब आप बियॉन्ड माइंड के एक्सपीरियंस में चले जाते हो तो आपके सारे रिग्रेट्स ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली इनका इम्पैक्ट सब खत्म हो जाता है। और दूसरी बात क्या है कि हमने उनको इतना इम्पोर्टेंस दे दी है, हमने अपने माइंड में एथिकल वैल्यूज डेवलप करके किसी को अच्छा, किसी को बुरा, किसी को पुण्य, किसी को पाप, अपने मन की मान्यताओं से और अपने प्री कंडीशन माइंड से, अपने बिलीफ सिस्टम के अकॉर्डिंग हमने बहुत कुछ लेबलिंग कर रखी है। तो क्या पता वो लेबलिंग इटसेल्फ ही रॉन्ग हो। कई चीजें एकदम नेचुरल होती है, लेकिन हमने उनको पहले लेबल कर दिया ये पाप है। जैसे जैनों ने आलू कांदा खाने को पाप बना दिया, रात्रि भोजन करने को पाप बना दिया, पानी अनछाना पिया तो पाप बना दिया, हर चीज को उन्होंने पाप 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 इतना पाप कर दिया। तो उनके बच्चों के दिमाग में ऑटोमेटिकली गिल्ट चला जाता है कि मैं ये जो कर रहा हूँ वो पाप है। और फिर वो क्वेश्चन भी करते हैं कि फिर खाली जैनों को ही पाप लगते हैं क्या, बाकी लोग भी तो ये काम करते हैं, उनको पाप नहीं लगता? तब तो हम जैन घर में पैदा हो गए, हमने भूल करी, हमको इतने सारे पाप लग रहे हैं, नहीं पैदा होते तो कोई पाप ही नहीं लगते। उनके क्वेश्चन भी उनकी जगह पर राइट है, क्योंकि ये सारे महात्मा लोगों ने, जैन साधु संतों ने, जैन समाज ने जिस तरीके से हमें रिचुअल्स में ढाला है, जिस तरीके से ट्रेनिंग दी है, जिस तरीके की बातें हमारे दिमाग में थोपी है, उसका तो अर्थ ये होता है कि आदमी जिंदगी ना जिए, क्योंकि सांस लेगा तो भी पाप है। हवा में तो इंसेक्ट्स है, वो भी तो आपके सांस के थ्रू जा रहे हैं, वो भी पाप हो गया। और वो इतना रिग्रेट ही करता रहेगा हर वक्त। तो क्या है ना, वो टीचिंग्स इटसेल्फ रॉन्ग है। और वो रॉन्ग टीचिंग्स की वजह से आदमी अपने भीतर में इतनी सारी बीमारियों को पाल करके जी रहा है। और पूरा जैन समाज या तो वो डबल फेसेस हो गया है, मतलब मंदिर वाला, स्थानक वाला चेहरा कुछ और है और इस सोसाइटी का फेस उसका कुछ और है। तो सारे लोग या तो बहुत सारे मल्टीपल फेसेस वाले हो गए हैं, और या फिर वो इतने चालाक हो गए हैं कि कहाँ पे क्या बनना है, कहाँ पे क्या दिखाना है वैसा करते हैं। और या फिर वो इतने ज्यादा गिल्ट में चले गए हैं, और बोथ वेज सब बीमार रहे। बोथ वेज, दोनों तरीके से, अगर वो मल्टीपल फेसेस हो गए तो भी वो बीमार ही है, और अगर वो अपने भीतर में गिल्ट चल करके जी रहे तब भी वो बीमारी है। और इन सब का कारण सो कॉल्ड साधु साध्वी और उनकी रॉन्ग टीचिंग्स है। So I तो will जब just मैं add on to this. I mean, in the sense कि जब भी हम गिल्ट महसूस करते हैं, अक्सर हर एक मम्मी डैडी उनके बच्चों को कुछ बोलेंगे तो वो थोड़ा गिल्ट आ जाता है, रिग्रेट आता है। तो लाइक वी ऑलवेज से कि गिल्ट आया, रिग्रेट आया, रिजेक्शन आया, वरी आया, सैडनेस आया, हर चीज को समर्पण करना है, या you forgive yourself. Forgiving yourself means starting today. That means forgiving yourself, actually forgiving क्या, किसको क्या forgiven करना है, if you're coming from energy. But अगर मानना ही है हम somebody है, human being है, तो forgive किया मतलब आपने अपने आप को, that is called equal to loving yourself. If we cannot forgive ourselves, that's why we cannot forgive others. We cannot love ourselves, or we cannot love others. तो ये हम सबको गलत क्यों देखते हैं? क्योंकि हमने अपने आप को गलती, किधर न किधर गलती देख रहे हैं. So the only thing is, everyone is right from his or her point of view. You be truthful to yourself. It means if you're feeling bad, good, not, release it, pass it on to Guruji or to whoever you wish to, universe को पास कर लो, and you come to zero every time. नहीं तो ये गिल्ट चक्कर में गिल्ट 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 हर चीज, कोई नॉन वेज खाता है तो गिल्टी, कोई दारू पीता है तो गिल्टी, कोई ये करता है तो गिल्टी,
I mean, every moment there is something guilty in someone's eyes. एक किसी के आंखों में तो वो गिल्ट होगा। तो जो भी ये अच्छे बुरे में फंसे, यू सी द होल SSY, either you are leader or follower. Leader experiences freedom, follower experiences बंधन। तो आपकी मर्जी, आप लीडर हो फॉलोअर हो, आपकी मर्जी, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे फ्रीडम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे तो कंप्लेंट करो, दुखी रहो। चॉइस इज योर्स, चॉइस तो हमारा आपका ही है। तो आपका चॉइस है। दर्द है शरीर में, जैसे उन्होंने बताया, पेन है, पेन को पेन देखो, बहुत दर्द है, पेन को चेंज देखो तो कुछ दर्द नहीं। it's exactly everything is how final buck comes back here. I am the creator of my universe. आपको अच्छा रहना है, मजे में रहना है, मजे में रहो, दुखी रहना है, आपका चॉइस है, वो भी अच्छा है, अगले जन्म में सुखी रहेंगे। मनोज जी, कंडीशनिंग इस लेवल तक मालूम है, लगाया होता है मालूम है कि कंडीशनिंग, पर वही तो डीकंडीशनिंग करना है ना, रीप्रोग्रामिंग करना है। प्रोग्राम तो हो गया है, वो ऑटो टेप में चल रहा है, तो वो डीप्रोग्राम करना है। तो in her case 20 years of one type of life, now you're reprogramming it. That's all, that way. So the earlier you get it, the better. That's all. And be truthful, जैसा बोला, vulnerable, truthful. Everyone is right. Everyone has the right to live happily or live unhappily. Choice is theirs. As long as you don't take their unhappiness, because हम लोग क्या है, in the name of goodness, in the name of well, I am taking his or her pain. Why you are taking anyone's pain? Your own pain, you will make it into change. ऑलराइट। एंड आपकी बात से मुझे वो याद आया ना कि SSY का एक फुल फॉर्म हमने भी निकाला हुआ है अलग से, दैट इज अ स्टूडेंट वन। सबके सब येड़े। बिकॉज जब मैंने ऑनलाइन पहले सिद्ध समाधि योगा किया, तो वो फर्स्ट कोविड का वेव था उस टाइम पे, तो मैं देख रही हूँ ये कौन सी क्लास है, सब हंसे ही जा रहे हैं, हंसे ही जा रहे हैं। तो बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट क्लास उन सब ने मुझे बताया कि अरे आप सिद्ध समाधि योगा समझ के मत आओ इसको, सबके सब येड़े समझ के आओ यहाँ पर। सबके सब येड़े। तो वो मेरा बॉम्बे लैंग्वेज से पहला इंट्रोडक्शन था, एंड इट इज सो ब्यूटीफुल हेयरिंग यू। मेरा एक क्वेश्चन है वैभव, यस, आपने बोला ना मानो नहीं जानो। मेरा इसमें थोड़ा सा ये डिफरेंस हो जाता है कि मैं जब ट्रस्ट करती हूँ तो मैं अपना लेफ्ट ब्रेन छोड़ देती हूँ बिल्कुल। और ऑफ कोर्स ये कई बार मेरे को मुश्किलें भी लेके आता है, बिकॉज फिर मैं ज्यादा ही ट्रस्ट कर लेती हूँ। सो बट जैसे मैं मनोज जी से, जैसे आपको हुआ ना कि गुरुजी मिले, मैं मनोज जी को जब मिली फर्स्ट टाइम में ही मैंने बोला कि मेरे गुरु ने मुझे ढूंढ लिया। सो व्हाट इज, मैं जानने की कोशिश नहीं करती, मैं जानती बाद में हूँ, पहले मैं मान लेती हूँ। सो व्हाट डू यू से अबाउट दैट? वो क्या आपको कैसा लगता है? ऐसा है ना, केवल आपकी बात नहीं है कपिला जी, मोस्ट ऑफ लोग ऐसा ही करते हैं। जब भी हम किसी के कनेक्शन में आते हैं, इंटरेक्शन में आते हैं, और अगर हमको हमारे ऊपर किसी का इम्प्रेशन पड़ता है, तो हम उनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, हम मान लेते हैं। लेकिन लाइफ तो एग्जामिनेशन बेचती ही है, लाइफ ऑटोमेटिकली कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट बेचती है, दैट्स और राइट। तब हम फिर जानने लगते हैं। और फिर जो हमने माना है और फिर जो हमारा एक्सपीरियंस होता है, दोनों के बीच में जब गैप होता है, तो हमारा इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता है। फिर हम इमोशनली कहीं हर्ट होते हैं, मेंटली हर्ट होते हैं, और फिर हमें लगता है कि ये तो ब्रेकअप हो गया, अब क्या करें। तो ऐसी हम सबकी लाइफ की जर्नी में ऐसी कितनी सारी स्टोरीज आई रहेगी, जहाँ हम ना जाने कहाँ कहाँ पर हमने किस किस को क्या क्या माना होगा, और फिर जो माना वो हमारा पिक्चर जब वहां से हट गया, तो हम बहुत टूट गए, है ना। तो ये लाइफ हमें खुद ही टीच करती है कि जब भी हम मानते हैं हम फंसते हैं। इसलिए मानो मत, आंख खोल करके जानो, क्योंकि जैसे ही हमने किसी को फॉलो करना शुरू किया, वैसे ही हम गड़बड़ हो जाएंगे। क्योंकि अब हम किसी के इंप्रेशन में चल रहे हैं, अंडर इंप्रेशन चल रहे हैं। और इंप्रेशन का नियम है कि वो आया है वो जाएगा, वो ऊपर चढ़ा है वो हट जाएगा, एक दिन हटता ही है। और तब हम जब आंख खुलती है तो हम पछताते हैं, अरे इतने साल मैंने इसको फॉलो किया था और हुआ क्या, है ना। तो इसीलिए ये बात जो कई अनुभवी लोगों ने कही है कि अनुभव को प्रधानता देना, एक्सपीरियंस को प्रधानता देना। और एक्सपीरियंस वो जो बिना किसी प्रोजेक्शन के आया हो, अगर प्रोजेक्शन आ गया तो फिर वो एक्सपीरियंस नहीं रहा। प्रोजेक्शन मतलब मानना, और जानना मतलब विदाउट एनी प्रोजेक्शन, विदाउट एनी प्रेजुडाइसेस, विदाउट एनी कंडीशनिंग कंडीशंस। आप आंख खोल करके देखना, तो अपने अनुभव के साथ आगे बढ़ते जाओ, ग्रो करते जाओ, मानने में मत उलझो। ऐसा, क्योंकि लाइफ तो एग्जाम लाएगी लाएगी, लाइफ सबका एग्जाम लाती है।
हर चीज का एग्जाम लाती है। चाहे आप जिसको बोलते हैं आई लव यू उसका भी एग्जाम लेंगे, जिसको बोलते हैं आई हेट यू उसका भी एग्जाम आएगा, सबका एग्जाम आएगा। जब एग्जाम आई आएगा तो थिंक पता लग जाएगा। वी आर वेरी ब्लेस्ड कि मैंने जो I- माना उसको एक्सपीरियंस के साथ जाना, एंड आई थिंक द हम्म। चॉइस वाज गुड। नो, और मैं सिर्फ बोलता हूँ कि मानो, जब भी हम बोलते हैं कि मानते हैं, हाँ मानते हैं, ब्लाइंड फेथ नहीं, मानो एक टाइम फ्रेम के लिए, एक टाइम फ्रेम के लिए मैं बोलता हूँ 66 डेज, कोई बोलते हैं 2 महीना 6 महीना जो भी है, उस टाइम में उतना तक तो सरेंडर करो, दिमाग मत लगाओ एंड फॉलो इट। लाइक आई हर्ड द स्टोरी ऑफ बुद्धा, ही वॉज द बेस्ट स्टूडेंट, और जिधर भी गए वो वॉज द बेस्ट स्टूडेंट। तो अल्टीमेटली जो जो उनके गुरु थे उस टाइम तक, वो बोलते बाबा मेरे से जितना हुआ मैंने आपको दिया, अभी आप आगे जाओ, अभी आगे। सो दैट यू मीट दैट टाइप ऑफ पीपल हु विल टेक यू, हु विल टेल यू गो गो हेड। उस टाइम तक आप मानो ताकि आप जानो, यू नो इसको मीन्स। ऐसे बोल सकते हैं कि हाइपोथेटिकली आप चीजों को यस, लीजिए, फिर यस, उसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए लेबोरेटरी में जाइए। फिर एब्सोल्युटली जब आपका एक्सपीरियंस बोल देता है तब आप राइट, एक्सपीरियंस के साथ ग्रो कीजिए, है ना। राइट, तो परफेक्ट। हाइपोथेसिस को हमें लेना ही होता है, पहला हम मानते हैं, लेकिन वो मानना मानने की तरह नहीं है, वो मानना जानने के लिए यस, हाइपोथेटिकली हमने उसको प्रिंसिपली हमने उसको यूज में लिया है। और उससे पहले ड्रॉप आउट मत करो, नहीं तो बहुत से लोग हाँ बोले अरे वो 2 दिन भी नहीं करेंगे, ये बहुत अच्छा दवाई है, दवाई नहीं खाएंगे तो बोलेंगे कैसा अच्छा है। सो यू हैव हाँ टू टेस्ट द व्हाट इज मेडिटेशन, और टेस्ट व्हाट इज प्राणायाम, और वॉट एवर समवन इज टीचिंग, टेस्ट इट, एंड टेस्ट इट। इफ इट वर्क्स वेल, ब्यूटीफुल, डजंट वर्क वेल, you are the king finally or queen. So finally, एग्जैक्टली। okay,